हाँ जी, so where were we? Sorry for all the disturbance. We saw prime numbers, we saw co-prime numbers. We saw this question also. Do we remember what did we do in this question? Huh? What was the basic idea behind this? We have to see the properties of odd and even number, the summation and subtraction and everything, right? If the total sum of three numbers is 100, right, one of them has to be an even number at least. So जब हम prime numbers की बात कर रहे हैं anyway, तो उस केस में हमने देखा there is only one even number. We saw that, right? तो हमने ये किया था. ये भी हमने कर लिया था. If all the angles of a triangle are prime number, yes. What did we see here? Again, one angle we took as 2 degrees. और total sum हमें पता है. It is exactly the same question as before, but one caveat was there that the angles were distinct. So one answer was 89 and 89. और 89 यहाँ पे आंसर भी दे रखा है. So we have to be careful कि जो पहला आंसर आ जाए पहले चेक करिए what is asked in the question and then you put an answer, right? Otherwise ऐसे ही question गलत होते हैं. Okay, we did this question as well, I think. तो आगे बढ़ते हैं सीधा. A lot of questions you will see which has no relevance to any formula or any mathematical idea except for addition, subtraction and all that. This is one such question. In fact, in the 2023 paper, which was touted to be one of the toughest paper of CSAT, if you go and go back and see, जो हम आज या कल की क्लास में देखेंगे भी, there were easily 20 maths questions that could have been done without any requirement of advanced mathematics or anything that you assume. 20 questions from maths and 25 questions we saw, हमने discuss भी किया था कि RC के 25 questions were straightforward. Only 2 or 3 were doubtful this time. So there were still 45 questions that could have been done without any proper knowledge of mathematics as such. ये सिर्फ panic में हम लोग गड़बड़ कर गए. And more than the mathematics area, we will try to work out the panic component here कि आपको डर निकल जाए आपका, so that किसी भी टाइप का पेपर आए you are not scared कि अब क्या होगा and you don't end up wasting a lot of time. Understand that, right? So for example, this question. What is this question? Anybody कैसे करेंगे, कोई idea है? Find the value of the expression 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6. Do we need any formula in this कि भाई summation ये होता है, if there is some odd subtraction going on then this is a formula? Yes? No. सिर्फ डर है ये कि बोल रहे हैं हम formula चाहिए. What do you see over here? अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके देखें, what do we see? क्या सब कुछ एक एक पेयर में है at least? Yes? Until 9900 also. Online guys, are you able to see this on the screen? Yes, sir. Okay, Yes, first sir. of all, do not hurry up in solving the answer कि क्या आंसर है, उसकी चिंता मत करिए. As long as you are able to understand thing, आंसर अपने आप आ जाएगा. We don't care अभी आंसर क्या है. So don't rush and solve the question. Understand the question, understand the process. Right? So what is happening over here? 1 minus 2 is what? Minus 1. 3 minus 4 is what? Minus 1. This is again minus 1. So there will be multiple minus 1s over here, and finally 199 minus 100 is also minus 1. Yes? How many minus 1s do you think there will be? 50, because total 100 numbers हैं. Out of that, every 2 number is making 1 minus 1. So that means अगर मैं 100 जो total number है upon 2 करता हूँ, तो I get 50. Yes? So 50 times minus 1 है यहाँ पे. So the value of this would be minus 50. इसमें कोई formula नहीं चाहिए था. ठीक है? And UPSC has asked this question in 2017 or 18. There was no formula that was required at all in this. Are you able to understand this? Yes? चलिए let's see कितना समझ में आया. सर एक बार next सर एक बार question और वापस करते समझाओ. हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें देखते हैं. ध्रुमिल थोड़ा ध्यान से समझो यार, पूरी क्लास को नहीं रोक पाएंगे हर बार ऐसे जैसे पिछली बार रोका था. थोड़ा ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखते हैं क्या हो रहा है इसमें. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन पीपल. और सब अपना अपना करेंगे, एग्जाम की तरह करें. यहाँ पे 2 लोग मिलके कर रहे हैं, सॉल्व हो जाएगा. यू विल नॉट रियलाइज कि आपको आया है कि नहीं आया है. सो प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन लाइक यू वुड डू इन द एग्जाम. 7 minus 8 plus 9 minus 10 plus 11 minus 12. What is happening over here now? Is it the same thing? What is the answer? Minus 44. Somebody is saying minus 44 is an answer. एक second, मैं लिख देता हूँ 2-3 आंसर. Somebody is saying minus 44. Minus 47. Minus 46 भी सुना मैंने. Online guys, everybody is saying, somebody is saying online also minus 46. So minus 47. Minus 47. It is minus 47. How did you come to that? Again same है. अगर ये बस यहाँ पे क्या missing है, उसके बाद is the same series.
That means total 100 होते हैं, but 6 digits are not there. So remaining digits are 100 minus 6, which is 94. So 94 कितने pairs हुए मतलब 94 by 2, that is 47 pairs. 47 pair, हर pair का -1 बन रहा है. So answer would be -47. -46 कैसे आया जिसका -46 आया people? मुझे ऐसा लग रहा है मैं अचानक से चेन छोटा हो गया हूँ. This question. माइनस Can you please देखना repeat this पड़ेगा question? मुझे. -46 कैसे आया दोस्तों? जिसका आया -46. What is the problem? Sir, Yes, please tell me हर्षवर्धन. sir repeat करेंगे, समझ में नहीं आया. क्या समझ में ये नहीं आया इसमें बताइए. वाला. फर्स्ट वाला समझ में आया था. हाँ sir. तो इसमें क्या है, ये instead of starting from 1 it is starting from 7. What is the logic that you applied in the first one? अगर 1 से 100 numbers हैं, so there are total 100 numbers and every 2 number is making a pair, Right sir, right sir. right? And every pair corresponds to how much? -1. 7 One, minus one. 8 is -1, 9 minus 10 is -1, 11 minus 12 is -1. Understood sir. Okay? Yes sir. इसको मेरी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है. It's saying confirm your speaking language. Sounds like you might have switched to a different language. Zoom is thinking I am not speaking English. Okay. So that is the idea over here. Yes. So now instead of 100 numbers, there are how many numbers? 100 minus 6 numbers. The 6 numbers are missing. So there are 94 numbers. That means कितने pair होंगे? 94 by 2. That is 47 pairs. Yes. और हर pair is equivalent to -1. So that's why 40 minus 47. Is this clear? समझ में आ रहा है? पक्का? Yes. चलिए let's see. Next question कर पाते हैं या नहीं? Now solve. Try to solve this. पहले solve कर दिया? कैसे? What happened here? -9. This is 1. उसके बाद same है. 1 to 20. घबराने का नहीं है बिल्कुल भी. So there are 20 numbers. इसका sum कितना होगा? -10. 10 pairs. 20/2. और ये 1 additional है. Right? ये +1 है. So this will be -9. That easy? Yes. What is the confusion? Where is +7? हाँ. So +7. After that is -8. +9 up to 20. Right? It goes on. Yes. So there are 20 numbers this time. So 10 pairs. So -10 यहाँ से और 1 additionally plus हो रहा है. So -10 plus 1 is -9. Clear है? कोई doubt तो नहीं? Doubt नहीं समझ में आ रहा है. क्या समझ में नहीं आ रहा है ध्रुमिल? सर समझ में नहीं आया कैसे. समेशन वाली सीरीज से क्यों समझाना है? बहुत. इतने फॉर्मूला क्यों याद करने हैं? जब भी एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करते हैं इधर से दूसरा गिर जाता है बाहर. बन तो सबसे सकता है बट जरूरत ही नहीं है. इज व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है? नो मैटर हाउ बिग दिस इज. लेट्स से द नेक्स्ट वन. ये तो सेम. इसमें वैल्यूज अगर दी हुई हैं सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन वुड बी गिवन. तो आप आराम से निकाल सकते हैं. राइट? दिस इज सेम क्वेश्चन बट नाउ विद वैल्यूज. ठीक है? यस. इससे टफ क्या हो सकता है? ये लंबा हो जाएगा यार. इससे टफ ये हो सकता है कि ये लंबा हो जाएगा. लेट्स से 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 1700. सॉरी minus 1700 बैठेगा ना ये. plus 1701. करिए सॉल्व. फाइंड द वैल्यू. 1 minus 2 plus 3 minus 4 up to minus 1700 plus 1701. What is the answer? Give me an answer, people. तय कर ले पहले. खुद ही तय कर ले. 849 minus plus. हाँ? One answer is 849. Minus या plus? Minus 849. प्लस भी है माइनस भी है. चलो दोनों आंसर. और बताओ. 851 प्लस है माइनस है? 851 है. हाँ भाई बाकी लोग क्यों चुप बैठे हैं? 851. वैशाली 851. अंजलि नहीं आया. आ गया 851. यू आई फॉरगॉट योर नेम. कैलाश. हाँ नहीं यू डोंट नो. ट्राई. आपका आया सर? -849 आया. व्हाट अबाउट यू? कुछ भी नहीं आया. इसमें इतना लुक करने का क्या है? चेक करिए ऑनलाइन गाइस. व्हाट इज द आंसर? अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग 851. आई हैव एन आंसर -480 आल्सो.
Sir, 851. I have an answer 2551 also. Sir, 849. Okay, what other answer do I have? कैसे आ रहे हैं ये आंसर? बाकी लोग सिर्फ 6 लोगों ने किया है. Online guys, I want some more answers. Sir, 851. minus 849. अच्छा. Solve करें? Let's try to solve. How many people are at 849 minus 849? Okay, quite a few. How many of you are 851? बहुत सारे लोग 851 पे भी हैं. और प्लस 849 भी है कोई? तुम तो ग्रे एरिया में हो, पता ही नहीं है प्लस है माइनस है. माइनस 849 है. सॉल्व करते हैं. क्या हो रहा है इसमें? ये वाला नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है. सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? फर्स्ट ऑफ ऑल 1700 तक तो सेम ही है. वो माइनस 100 तक गया था, ये माइनस 1700 तक गया है. सो हाउ मेनी पेयर्स वुड बी देयर? फर्स्ट ऑफ ऑल 1700 अपॉन 2. दिस इज हाउ मच? 850. पक्का? पक्का? माइनस 850. हाँ, माइनस 850 किसी का आया आंसर? माइनस 849 कैसे आया फिर? प्लस 1701 है ना, प्लस 1 तो नहीं है. सो माइनस 850 में प्लस 1701 करोगे तो क्या 851 नहीं आएगा? क्या कंफ्यूजन है? जिसका 849 आया माइनस में, क्या मिस किया? 1 ले लिया 1701 को. यही गलती होती है. और एक ना एक ऑप्शन में होगा आंसर, एंड यू विल हैप्पीली मार्क इट ऑल्सो. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड दिस इज वेयर प्रैक्टिस विल कम इनटू प्ले. ध्यान देना है, 1701 है, एक नहीं. जल्दीबाजी में कर देते हैं, गड़बड़ हो जाती है, रखे हुए मार्क्स छोड़ाते हैं हम कि नहीं ये वाले नहीं चाहिए, 2.5 नंबर नेगेटिव वाले दे दो. ठीक है, ये नहीं करना है. बी वेरी केयरफुल. सो दिस कैन बी द कॉम्प्लिकेशन. कबीर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सी क्या है क्वेश्चन. द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट. फोकस पहले, हो गया के बात नहीं है, नंबर नहीं मिल रहे, हो गया के समझ में आना चाहिए. हो गया सबको पता है, हो जाएगा ये. ठीक है. द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट. हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर? हाँ भाई हो गया. कितनी पॉसिबिलिटी है? ओनली, देखो इसमें भी हो गया में भी, इतने सिंपल क्वेश्चन में भी 2, 3, 4 सब खेल रहे हैं. एक बोल रहा है 2 पॉसिबिलिटीज, एक बोल रहा है 3 पॉसिबिलिटीज. लेट्स सी कैसे हैं, क्या है, क्या क्वेश्चन है. सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट. क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसी? 1, 2, 3, यही पॉसिबिलिटी एक बनती है. इंटीजर्स है ना, तो 1, 2, 3 इज व्हाट? 6, एंड 1 + 2 + 3 इज व्हाट? 6 अगेन. इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी दैट कैन कम अप? क्या हम 2, 3, 4 बना सकते हैं? नहीं, राइट. तो बाकी हमें पता है तो बाय डिफॉल्ट कि कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है जो 3 मल्टीप्लाई होके और तीनों के सम के बराबर हो. दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी दैट वी नो ऑफ नॉर्मली. तो यस, किसी को डाउट है इसमें? एनीवन? नोबडी हैज अ डाउट. चलिए. So it says the sum of 3 consecutive integers is equal to their product. तो एक पॉसिबिलिटी तो ये बन रही है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स एंड वी आर वेरी केयरफुल कि इंटीजर है तो हम नेगेटिव वैल्यू भी कंसिडर करेंगे. व्हाट नेगेटिव वैल्यू आर यू कंसिडरिंग हियर? -1, -1, 0, 1, -1, 0, 1 करी तो सम ऑफ सम क्या है इसका? 0, एंड प्रोडक्ट क्या है इसका? 0. यस, सम भी 0 है, प्रोडक्ट भी 0 है. दैट इज द अदर पॉसिबिलिटी. एनी अदर पॉसिबिलिटीज देयर? -1, -3, ये कितना हुआ? -6. ये किसके -6 क्या हुआ? सम या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट भी -6 हुआ. -1 × -2 इज +2, +2 × -3 इज -6, एंड सम क्या हुआ? -1, -2, -3, -6. क्या कोई पॉसिबिलिटी -1, 2 और -3 की भी हो सकती है? प्रोडक्ट तो 6 है, बट सम. ठीक है. और दूसरी बात क्या? इट इज नॉट कॉन्जिक्यूटिव. हाँ, वी हैव टू लुक एट दैट ऑल्सो. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग जल्दी नहीं करना है, सॉल्व करने के समझो क्वेश्चन. दे आर आस्किंग कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स. कॉन्जिक्यूटिव या तो ये हो सकता है, कॉन्जिक्यूटिव या ये हो सकता है, या ये हो सकता है. नथिंग एल्स कैन बी कॉन्जिक्यूटिव ऑल्सो. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक. सो -1, 2 एंड -3 आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव. सो ये पॉसिबिलिटी वैसे भी नहीं बननी है. गेटिंग द पॉइंट? सो अ लॉट ऑफ टाइम यू डोंट नीड एनी मैथ्स आइडिया. बेसिक
प्लस माइनस करना आना चाहिए, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए या ऐड करना आना चाहिए. दैट इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग. इट्स एन एप्टीट्यूड पेपर पीपल, इट इज नॉट अ मैथ्स पेपर एनीवे. यस, दैट्स द आइडिया. तो मैथ्स का डर ना हो, सिंपल क्वेश्चन पढ़ के आप सॉल्व कर सकते हैं. जस्ट दैट यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन्स देयर. इंटीजर है तो नेगेटिव भी कंसिडर करना है इफ देयर इज एन इंटीजर. एंड कॉन्जिक्यूटिव लिखा है, be careful with every single word that is given over there and you will never get a question wrong. The moment we miss out on any word or we misread anything, जैसे वो 849 हो गया, वहीं आंसर गड़बड़ हो जाते हैं. आते हुए सवाल गलत करके आते हैं हम. मैथ्स इतनी मुश्किल नहीं है. ठीक है, चलिए, गुड. सो ओनली 3 such possibilities, राइट? कौन सी पॉसिबिलिटी बनी? 1 2 3, -1 0 +1 and -1 -2 -3. ओनली 3 possibilities. So only 3 is the answer. और खासकर ऐसे क्वेश्चन जहां नो सच पॉसिबिलिटी का होता है, वहां अक्सर गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी होती है. ठीक है, नो सच पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द आंसर करेक्ट. चलिए, व्हाट इज दिस? लेट्स सी इफ यू कैन सॉल्व दिस. क्या कह रहा है ये? पहले क्वेश्चन समझना है, सॉल्व करने की कोशिश करिए, पहले क्वेश्चन समझिए. गिवन n is equal to 1 plus x and x is a product of 4 consecutive integers, which of the following is true? तो हमें क्या पता है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नो ऑफ? ये इंटीजर रिलेटेड क्वेश्चन, जो नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी. यस, सो वी नो n इज 1 plus x, और हमसे पूछा गया है भाई n का बताना, ये ऑड है, प्राइम है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है? व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर? जो सेम से मल्टीप्लाई होके एक इंटीजर आ जाए, दैट इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर. पॉइंट में कुछ ना है ना? 2 into 2 = 4, so 4 is a perfect square, but 3 is not a perfect square because 3 is equal to 1.732 into 1.732. यस, तो पॉइंट में ना हो, जिसके फैक्टर्स सेम हो और इंटीजर्स हो या नेचुरल नंबर्स हो. इंटीजर्स हो, नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, हो सकता है क्या नेगेटिव? नेगेटिव नहीं होता है ना? स्क्वायर रूट वो तो इमेजिनरी हो जाएगा. एग्जैक्टली, गुड. नेचुरल नंबर्स हो, परफेक्ट स्क्वायर में नेगेटिव नहीं आएगा बिकॉज इट विल बिकम एन इमेजिनरी नंबर. गेटिंग द पॉइंट? नेगेटिव एंड पॉइंट नहीं आएगा, है ना? पूरा फुल नंबर आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए. चलिए, सो व्हाट डू वी नो? वी वांट टू फाइंड आउट इफ n इज ऑड, n इज परफेक्ट स्क्वायर और व्हाटएवर. एक चीज हमें पता है, अगर ऑड नंबर में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा. कैन वी बी श्योर ऑफ दिस? यस, 3 में 1 ऐड कर दो 4 हो गया, 5 में 1 ऐड कर दो 6 हो गया, 261 में 1 ऐड कर दो 262 हो गया. एंड इवन में अगर 1 ऐड कर देंगे तो ऑड हो जाएगा. घबराने वाली बात नहीं है, पेपर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो समझा रहे हैं. यस, सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? हमें n बताना है, ऑड है, इवन है, क्या है, सबसे पहले तो ये बताना है. और अगर प्राइम भी बताना है तो पहले हमें इसके फैक्टर्स देखने पड़ेंगे. तो उसके लिए हमें n की वैल्यू पता हो, और n की वैल्यू के लिए हमें x का नेचर पता होना चाहिए, सबसे पहली बात. राइट, x का नेचर कैसे पता चल सकता है? गिवन है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स. तो क्या हो सकते हैं? 2 3 4 5 भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 भी हो सकता है. यस, या माइनस कुछ भी ले लो. ठीक है, माइनस कुछ भी ले लो. वन थिंग इज दैट. तो इसमें क्या हो रहा है? एक ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है. ठीक है, सो 4 कॉन्जिक्यूटिव में कम से कम 2 इवन नंबर तो हैं ही. और अगर एक भी इवन नंबर हो, फॉरगेट अबाउट 2, विल द प्रोडक्ट बिकम इवन और ऑड? इवन. ये पता है, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे या 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या वो इवन नंबर बन जाएगा? So that means x is definitely an even number. Can we say that? तो हमें एक चीज तो पता चल गई कि x even है. Everyone with me so far? Yes, कोई डाउट नहीं है इसमें. So 1 plus x क्या होगा? Odd. So can we say this is perfect? This is definitely correct. n is an odd integer. We can say that. Yes. n prime है या नहीं, क्या बोल सकते हैं किसी भी तरह से? बोल सकते हैं या नहीं? No, sir. n प्राइम है या नहीं? वी कैन नॉट से, बिकॉज इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, 1 2 3 4 का प्रोडक्ट कितना होता है? 24, और +1 कर दोगे तो 25 हो जाएगा, विच इज नॉट अ प्राइम नंबर. 5 into 5 is 25. यस, सो एक भी नंबर अगर मुझे कोई मिल जाता है विच इज निगेटिंग द सेंटेंस, तो वो गलत हो सकता है. ठीक है, तो सेकंड तो करेक्ट नहीं है, n इज नॉट प्राइम, बिकॉज क्या लिया हमने लिया 1 into 2 into 3 into 4 is 24 and n is 1 plus x. That means it is 1 plus 24, which is 25. 25 is a prime number or what? No.
सो n इज डेफिनेटली नॉट प्राइम, तो इसे काट देते हैं। ये सही है, ये गलत है। या तो हम यहीं से देख लें कि क्या सही है क्या गलत, बट यहाँ 1 और 3 भी दे रखा है तो 3 भी चेक तो करना ही पड़ेगा। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बना है? यस, परफेक्ट स्क्वायर बना है। बट क्या इंटीजर्स हैं? यस। और हम कोई और नंबर भी ले लें, एक नंबर से और चेक कर लूं, 2 3 4 5, ठीक है। कितना हुआ ये? 120 प्लस 1 121। क्या 121 भी है? बिल्कुल है ना, परफेक्ट स्क्वायर है। और अभी भी डाउट है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स रखा है, -1 0 1 2 भी कर लो तो ये तो 0 हो जाता है। x बिकम 1, सॉरी ये 0 हुआ, n बिकम्स 1, ठीक है। 1 इज ऑल्सो 1 into 1, तो इट सीम्स लाइक कि हम लगा रहे हैं तो आ रहा है, ठीक है। तो अगर 3-4 नंबर में आपका आ रहा है तो यू कैन एक्चुअली सेफली पिक इट अप कि हाँ मोस्टली होगा, अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं। अदरवाइज व्हाट विल यू डू, यू विल हैव टू इसको फैक्टराइज करेंगे, राइट। उसके बाद स्क्वायर रूट का एक आइडिया होता है वो लगाएंगे, जो मैं स्क्वायर रूट में बताऊंगा। विल रिविजिट दिस क्वेश्चन कि कैसे इसको हम फॉर्मूले से अप्रोच करें। बट एग्जाम में फॉर्मूला लगाने का टाइम अक्सर कम होता है। जैसे मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन भी लिया था, दैट इज पेंडिंग, कि प्राइम नंबर कैसे निकालना है विद द रूट फॉर्मूला, वो हम आज देखेंगे, एक एक करके ऐड करेंगे चीजें। सो हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चन यूजिंग अ फॉर्मूला वो भी बताऊंगा, बट जरूरत नहीं पड़ती है मोर ऑफन देन नॉट, कीप दैट इन माइंड, ठीक है। सो सिंपल वैल्यू पुट करिए, अगर आपके पास 3-4 वैल्यू में आ रहा है सो मोर ऑफन देन नॉट आंसर होगा। एक भी वैल्यू निगेट कर रही है तो वो कैंसिल हो जाता है, सिंपल इज दैट, ठीक है। सो दैट इज द अप्रोच यू हैव टू टेक, ताकि जल्दी हो चीजें सॉल्व। सो इसका आंसर 1 in 3। इफ यू टेक 3, हाँ ओके देन 1 होगा इसका आंसर। वील चेक इट, ठीक है, वील चेक इट, डोंट वरी। उस पे दोबारा आएंगे हम, बिकॉज वी वांट टू सॉल्व इट यूजिंग दैट फॉर्मूला आल्सो, मेथड आल्सो, डोंट वरी, विल कम दैट। 3 4 5 6 से आ जाए, 3 4 5 6 से 361 आ रहा है। 361 किसका स्क्वायर है? 19 का है, तो आएगा मोर और लेस, ठीक है। वील चेक इट, डोंट वरी। हम मेथड से भी निकालेंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि आप 4-5 वैल्यू रखें, कोई एक वैल्यू मिसिंग हो रही होगी। अगर नहीं होगा तो सिंपल वैल्यू में ही पता चल जाएगा नहीं होगा। यूपीएससी इज नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू नो प्रॉपर मैथ्स, अंडरस्टैंड, एप्टीट्यूड, लॉजिक लगा सकते हैं क्या आप? इट इज अ लॉजिक पेपर मोर देन मैथ्स पेपर, इसलिए बता रहा हूं मैं। मोस्टली 1 and 3 ही है इसका आंसर, यस 1 and 3 ही है इसका आंसर, बट वील कम बैक टू दिस क्वेश्चन अगेन टू सॉल्व इट विद द दिस थिंग फॉर्मूला। चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? दिस इज अ यूपीएससी क्वेश्चन अगेन, ठीक है। दिस इज यूपीएससी, रटे हुए हैं क्योंकि क्वेश्चन पहले करे हुए हैं। सॉल्व करने का है, वी हैव टू फिगर आउट व्हाट इज द मेथड टू अप्रोच द क्वेश्चन, आंसर से मतलब नहीं, ठीक है। आई वांट टू सी द मेथड, क्या आपके फंडे क्लियर हैं? अभी तो ये इतना सिंपल है, जरा सा घूम जाएगा फिर क्या करोगे? मेथड हैज टू बी क्लियर, राइट, अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी क्लियर। लेट पी क्यू आर एस बी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 0 नहीं होता है, 1 ऑनवर्ड्स होते हैं। ऑल द इंटीजर्स 1 ऑनवर्ड्स आर नेचुरल नंबर्स सच दैट दिस इज गिवन। कॉम्प्लिकेटेड लगा बहुत सारे बच्चों को, सर ये कैसी इक्वेशन है तो सॉल्व करनी भी नहीं आती हमें। बट व्हाट इज दिस इक्वेशन प्रैक्टिकली? ये एक इक्वेशन नहीं, ये 3-4 इक्वेशंस हैं इफेक्टिवली देखा जाए तो, यस। एंड देन द क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। सो व्हाट इज दिस इक्वेशन? एक है p minus 2016 is equal to q plus 2017, दूसरी है q plus 2017 is equal to r minus 2018, और तीसरी है r minus 2018 is equal to s plus 2019. We have 3 equations. Yes. एक इक्वेशन और बनानी है तो और भी बन सकती है, p minus 2016 is equal to s plus 2019, कोई भी बना लो। There are multiple equations that you can make out of this. ठीक है, एक सब एक दूसरे के बराबर हैं तो you can make a lot of equations here. अगर आप 3-4 इक्वेशन को सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा, बट दैट इज अ लॉन्ग मेथड। यस, इसको सॉल्व करिए, क्या बैठ रहा है ये? p इज इक्वल टू q प्लस समथिंग एंड इट्स अ बिग नंबर, यस 4033, देन q इज इक्वल टू r माइनस समथिंग, राइट, एंड r इज इक्वल टू s प्लस समथिंग। ठीक है, इससे क्या मैं बोल सकता हूँ r इज इक्वल टू s प्लस समथिंग से कि s बड़ा है r बड़ा है, s में कुछ ऐड कर रहे हैं तो r बड़ा है s से। कैन आई से दिस सिंपल? q इज इक्वल टू r माइनस समथिंग,
Q बड़ा है R, R में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो R Q से भी बड़ा है, ठीक है, एंड P इज इक्वल टू Q माइनस 2016 या P इज इक्वल टू Q प्लस समथिंग, तो P बड़ा है Q से, बट अभी मेरे पास रिलेशनशिप क्लियर नहीं है, इतना तो पता है कि इन तीन में R बड़ा है। सो द सिंपलर थिंग हियर वुड बी कि मैं क्विकली P और R का रिलेशन भी एक बार चेक करके देख लूँ, P बड़ा है R, यस, क्योंकि दो में तो मुझे पता है R बड़ा है, लार्जेस्ट बताना है मुझे, राइट। अगर मैं एक इक्वेशन ये बना लूँ कि P माइनस 2016 इज इक्वल टू R माइनस 2018, सो P विल बी इक्वल आर R माइनस 2, तो मतलब R से तो छोटा ही है, दो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं R से, देन वी आर गेटिंग P, सो R is greater than P also, so that means R is the greatest among all। ये सिंपल चार इक्वेशन आपने सॉल्व करी तो आया, बट क्या हम सीधा डायरेक्टली देख के बता सकते थे कुछ? फर्स्ट ऑफ ऑल घबराना नहीं है, इक्वेशन कैसी है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। कितने लोग घबरा गए थे कि यार ये इक्वेशन नहीं समझ में आ रही है? हाँ, कोई रीजन नहीं था, इट इज अ सिंपल इक्वेशन, बस एक लाइन में लिख के दे दी गई है। आधे टाइम हम डर जाते हैं कि यार ये कैसे होगा, मैं तो मैथ्स नहीं आती। मैथ्स की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, प्लस माइनस आना चाहिए, वो सबको आता है। सर वो लास्ट वाला स्टेप ने समझा, R इज ग्रेटर देन P। सर P माइनस 216 इज R माइनस 2018, यस, सो P इज इक्वल टू व्हाट? R माइनस 2018 प्लस 2016, R माइनस 2, ओके सर, समझा सर? सो R इज इक्वल टू P प्लस 2, P से दो बड़ा है R, राइट सर, समझ गया ना? दैट इज द पॉइंट। अब यहाँ देखो, किसी चीज में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो Q प्लस समथिंग के बराबर आ रहा है, तो ऑलरेडी हमें पता है कि यार P तो बड़ा है, यस। ऐसे ही आगे देख सकते हो कि Q में ऐड किया तो भी R में सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही बराबर हो रहा है, तो R बड़ा है। अगर आप नॉर्मली देखना चाहते हैं दैट वी एडेड समथिंग इन Q एंड इवन देन इट इज इक्वल टू R व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम R, right? And similarly we are subtracting something from R and it is then equal to S, and that too when we are adding something in S, so R is way bigger than S, simple as that। if you don't understand directly, जो देख के नहीं समझ में आ रहा है, you can always make quick 4 equations। whenever there is a equation in this format, you simply understand that there are these separate equations that I can use, everything is equal, ठीक है। इसका सिंपल फंडा वही है कि when it says A is equal to B is equal to C is equal to D, then can we not say that A is equal to B also, A is equal to C also, A is equal to D also? Similarly B is equal to C, B is equal to D, B is equal to A, वो already कर चुके हैं अपन, and C is also equal to D, C is also equal to B, and C is also equal to A, similarly DB। so ये सिर्फ ये इक्वेशन थी जो देख के अंदर से डर गए हम, yes, it was a easy 2.5 marks again। I think this is a 2019 question, 2019 or 2020, it is that simple a question। नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन में सिर्फ आपको प्लस माइनस, इंटीजर का कॉन्सेप्ट एंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का कॉन्सेप्ट एंड ऑड इवन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एंड ऑल द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड ओनली इफ यू शो पेशेंस, दैट्स द की पॉइंट, राइट। ये यूपीएससी क्वेश्चन है विच वाज कंसिडर्ड कि यार ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, बट आर दीज डिफिकल्ट क्वेश्चंस एट ऑल? एक भी फॉर्मूला यूज नहीं किया हमने, राइट, सिंपल मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखें। हाँ जी, अगेन सिर्फ समझेंगे पहले and then try to solve it। 3 of the 5 positive integers, ये भी यूपीएससी क्वेश्चन है, let's see if you are able to solve it। 3 of the 5 positive integers p, q, r, s, t are even and 2 of them are odd। 3 odd है, सॉरी 3 even है, 2 odd है, and they are not necessarily in order, तो हम कह नहीं सकते कौन से even है कौन से odd है। yes, consider the following question। तो पहली बात तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं P, Q, R, S, T के, will it be odd or even? It will definitely be even। It's not required in the question, but generally we are discussing, because no matter how many odd numbers are there, if you multiply it even with one even number, it becomes an even number। We are multiplying it with 3 even numbers here too। yes, so वो तो हो ही गया। yes, now let's see what is it asking। P plus Q plus R minus S minus T is definitely even। Can we say that? हमने बोला 3 तो odd है, सॉरी 2 odd है और 3 even है, ठीक है। तो अगर हम इसमें 3 इवन लेते हैं, P प्लस Q प्लस R इवन लेते हैं, राइट, और 2 ऑड सब्ट्रैक्ट करते हैं, व्हाट इज द आउटकम? इवन प्लस इवन इज ऑलवेज इवन, इवन माइनस ऑड इज ऑलवेज ऑड ओनली,
Yes, and odd minus odd, even. Even minus even, even. So there is only one possibility जहाँ पे outcome odd आ सकता है, ठीक है? और अगर किसी odd में हम even ऐड कर दें तो odd बन जाएगा फिर से, ठीक है? तो अब देखो कैसे कर सकते हैं इसको. P plus Q plus R minus S minus T. R is definitely even. Can we say that? अगर हम इन तीनों को even मानते हैं सबसे पहले, तो ये टोटल सम हो गया even, और हम दो odd सब्ट्रैक्ट किए, तो even minus odd was odd, and odd minus odd even आ गया वापस, राइट? एक पॉसिबिलिटी तो ये. दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं किसी दो को even मान लेता हूँ, इन दो को odd मान लेता हूँ, इसको फिर से even मान लेता हूँ. एक even सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है? दैट इज व्हाट यू हैव टू सी. कहाँ गया भाई क्लियर करने वाला? There could be even 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 minus odd odd. There could be even odd even minus even minus odd. There could be even odd odd even even. यही हो सकता है या और कोई पॉसिबिलिटी भी है? There's only three possibilities. Again, many a times you don't need to understand anything, बस because there are very few possibilities only. क्या ये possibilities निकाल सकते थे? In this, there are three even two odd. This is how you approach these questions. There are three even two odds. क्या ये possibility निकाल सकते थे? किसको difficulty है अभी? Who did not understand this? Online guys? Anyone? Understood. Understood? सबको समझ में आया? इसका आउटकम क्या है? तीन, ये दो, ये इवन सम है. इवन में से ऑड माइनस किया, ऑड हो गया. ऑड में से ऑड माइनस किया, इवन हो गया. दिस इवन. यस, इवन ऑड इवन, समेशन इज ऑड. Even plus even is even plus odd is odd. Yes. Now from odd we subtract an even number, we get an odd number, and then we subtract an odd number from total odd number, again even आ गया. Yes. Now even plus odd is even. Even plus even is even. Even में से even minus किया, even. Even में से even minus किया, even. सिर्फ इतना करना था, ठीक है? दिस इज आई थिंक 2021 क्वेश्चन. कितने लोग कर पाए थे? पेपर तो दिए होंगे काफ़ी लोगों ने. कर लिया था? कितने लोग नहीं कर पाए थे? सबने कर लिया था? फिर भी सब यहाँ बैठे. कितने लोगों ने नहीं किया था? एक्सेप्ट करना पड़ेगा यार. हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो हार्म, बट वाज दिस अ डिफिकल्ट क्वेश्चन? यू जस्ट हैव टू शो सम प्रेजेंस ऑफ माइंड ओवर देयर, एंड देयर इज नो फॉर्मूला दैट कैन बी अप्लाइड इन सच क्वेश्चंस एनीवे. इट इज ऑल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस. इसमें कोई पॉसिबल फॉर्मूला नहीं लग सकता है. देयर वर ओनली थ्री पॉसिबल आउटकम्स. Yes, there is no other possible outcome. अब odd इधर रखो या इधर रखो, it doesn't make a difference. It does not make a difference. ठीक है ना? So that is the point. So this is definitely even. We know that. अब second वाला check कर लेते हैं ऐसे ही. Second वाला बोल रहे हैं 2p, q, 2r, 2s and t. ठीक है? तो अगर हम even, 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 odd, odd मान रहे हैं, yes, या odd, even, odd, इसमें तीन तो इसने ये दे रखे हैं और दो नॉन वो दे रखे हैं इंटू टू. ठीक है? अब इसको और सिंपल तरीके से देखते हैं कि तीन तो इंटू टू है और दो सिंपल है. सो आइदर दीज टू कैन बी ऑड एंड रेस्ट ऑल थ्री कैन बी इवन. तो इस केस में तीन इवन ऐड किए, एक ऑड ऐड किया. इवन प्लस ऑड कितना हुआ? इवन प्लस ऑड, एंड देन दूसरा ऑड ऐड किया, ऑड प्लस ऑड इज इवन अगेन. तो ये इवन हो गया पहली केस में, तो डेफिनेटली ऑड तो हो ही नहीं सकता, वहीं कैंसिल हो जाता है, कहानी खत्म. बट लेट्स चेक इट अगेन. ठीक है? एक पॉसिबिलिटी है कि एक, मैं यहां लिखता हूं ताकि पॉसिबिलिटीज बना सकूं, हवा में आधे बच्चे उड़ जाएंगे. ठीक है? लेट मी चेंज द कलर. द फर्स्ट पॉसिबिलिटी वी सॉ वाज कि ये ऑड है, ये ऑड है. ठीक है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी वी सॉ दैट, जिसमें इवन होने का पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी तरह से. सो ये ऑलरेडी इवन है, ये ऑलरेडी इवन है, ये ऑलरेडी इवन है. इवन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आउटकम इज इवन ओनली, देयर इज नो प्रॉब्लम देयर. और तीन इवन एक साथ ऐड हुए तो वो इवन आउटकम है. तीन इवन में एक ऑड ऐड हुआ, ऑड हो गया, और ऑड प्लस ऑड ऐड किया, इवन हो गया. सो इसका आउटकम ऑटोमेटिकली इवन आ चुका है एक बार. यस, द मोमेंट वी हैव दैट वी कैन ऑलरेडी कैंसिल इट आउट कि डेफिनेटली ऑड तो है ही नहीं, एक ही पॉसिबिलिटी में इवन आ गया. वी हैव इवन इन पॉसिबिलिटी. यस, अनदर पॉसिबिलिटी इज व्हाट? मैं एक इसको ऑड मान लेता हूँ, एक इसको ऑड मान लेता हूँ, बाकी तीनों इवन है. राइट? सो दैट मीन्स वो तीन इवन है ऑलरेडी.
Now, if I multiply odd by 2, that is an even number. The outcome is even. So I have 4 even numbers now. This is also even, this is also even, this is also even. This ये into 2 होके even हो गया. So 4 even add हुए तो even, एक odd add हुआ तो odd. तो इस possibility में odd बन रहा है. But एक possibility already even की आ चुकी है मेरी. And what is the third possibility? कि ये भी odd हो और एक और दूसरा कोई 2 वाला odd हो. ठीक है, तीसरा भी 2 वाला हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है. और ये already even है. Then in this case, 2 into odd here also and 2 into odd here also. So all 5 are even. And the moment all 5 are even, it is even only. So this is incorrect, this is correct. Was it a difficult question? No. There are only 3 possibilities in each case. All you had to do was understand even odd का multiplication क्या outcome देता है या summation क्या outcome देता है. ये question देख के डर गए हम लोग एग्जाम में और YouTube वाले और ऐड कर रहे हैं फ्यूल कि डर नहीं रहे हो तुम, डरो, अब पता नहीं पेपर पास होगा नहीं होगा कभी, छोड़ दो तैयारी. 2023 का पेपर यूपीसी सेट का आया है तो 4.25 लाख बच्चे फेल हो चुके हैं इस बार. अगली बार 6 लाख फेल होंगे जो पेपर भी नहीं देते हैं. जो सोच रहे हैं वो पहले फेल होके बैठे हैं कि हम फेल हो गए. डरने का कुछ नहीं है. यूपीएससी विल नेवर गिव एन अनसॉल्वेबल पेपर. ठीक है, अब तो उसको हर बार कैट में भी जवाब देना पड़ता है, फिर दिल्ली हाई कोर्ट में भी देना पड़ता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी देना पड़ता है. सो दे विल नॉट प्ले अराउंड लाइक दिस कि वो जवाब ना दे पाए. दे कैन ईजिली कम अप विद प्रूफ्स कि सर देखो ये 40 क्वेश्चन थे, अब बच्चे ही नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं. अगर ये भी सॉल्व नहीं करेंगे तो सिविल सर्वेंट कैसे बना दें हम. यस सर, 2 into odd, anything even into odd is even, right? So there were still 40-45 questions that could be solved in 2023 paper. तो पहली बात तो डरने की जरूरत नहीं है. You will always have a paper in which you can solve 40 questions. और हमने तो देखा था 31 questions में क्लियर हो जाएगा, 3 क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो. आर टारगेट इज हम कि 45 क्वेश्चंस कर पाए. ठीक है मैडम, इधर आ जाओ, आगे दिखेगा कैसे. आर टारगेट इज 45 क्वेश्चंस हम कर पाए. दैट इज द पॉइंट. अभी दिखाऊंगा मैं आज या कल की क्लास में, डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम है, 2023 का पेपर भी कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे, ताकि वो डर जो बैठ गया है वो निकले. सबसे पहला पॉइंट वो है. ठीक है, सॉल्व तो सब हो जाएगा जैसे ही वो डर निकल जाएगा लाइफ में से. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं बहुत सारे हमें. हाँ जी बताइए. ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अब यूपीएससी पूछने लगा है सीसैट में भी. यस, क्वेश्चन इज एक्स एन इंटीजर. दिस इज अ क्वेश्चन, इज एक्स एन इंटीजर. स्टेटमेंट सेज, इसमें कैसे सॉल्व करना होता है कि वी हैव टू सी क्या एक ही स्टेटमेंट से कैन वी आंसर द क्वेश्चन. अगेन वी सॉ दिस इन द डे बिफोर यस्टरडे क्लास आल्सो कि आंसर कैन बी येस एज वेल एज नो. इट डज नॉट हैव टू बी येस ओनली. यस, सो अगर नो भी आंसर आ रहा है तो यू कैन से कि यूजिंग ओनली स्टेटमेंट 1 वी कैन सॉल्व द आंसर और वी कैन गेट द आंसर. सो एक स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है या दूसरे से आ रहा है या दोनों को मिला के आ रहा है या दोनों के साथ भी नहीं आ रहा है. दैट इज द 4 ऑप्शंस दैट दे गिव. सो लेट्स सी, इज x an integer when they is saying x by 3 is not an integer. x by 3 is not an integer. क्या आना चाहिए माइंड में. 2-3 एग्जाम्पल आ जाए कि वह इंटीजर तो 5 होता है, 5 by 3 इंटीजर नहीं है, बट x जो है इंटीजर लग रहा है, बट ऑल ऑफ अ सडन 9 भी इंटीजर होता है, तो x by 3 भी इंटीजर है. ठीक है, और इधर x आपका कह सकते हैं कि x इंटीजर हो गया या नहीं व्हेन दिस इज नॉट एन इंटीजर. फर्स्ट केस में ही नहीं कह सकते. दिस इज व्हाट 1 पॉइंट समथिंग है ना. सो वी सॉ दैट x by 3 which is 5 by x, 5 by 3, x को हमने 5 माना. So the outcome is coming out to be not an integer, but still x is coming out to be an integer. One thing is that. ठीक है, and when x is an integer, outcome can also be this thing. So can we say for sure कि x by 3 इंटीजर नहीं है, उससे हम बोल सकते हैं कि x इंटीजर है. हाँ, सोचिए एक बार और एग्जाम्पल सोचिए इसमें. Is there any other possibility where we say x by 3 is not an integer but x is an integer? बहुत सारे केसेस हैं, but there is also a possibility where x is also an integer and x by 3 is also an integer. ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है when x by 3 is not an integer, x is also not an integer? कभी भी हो सकता है. ये 1.6 ना होके 1.8 हो जाता है ना. So it can be 5.4 upon 3 also. Any number can be there, right? It is not. It has not said
x integer है, it is asking if x is an integer or not. So x by 3, which can be 5.4 upon x 3 also, is also not an integer. So x can also be 5.4 as well. X can also be 10.3 also. Yes. So can we say using this statement alone कि x is an integer or not? We cannot say because we have multiple possibilities. तो हम clarity से नहीं कह सकते हाँ भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. If we could have said no, it is not an integer, then also we would be happy. But हम कुछ नहीं कह पा रहे because we have multiple options. Second is 3x is an integer. Can we say is x an integer? कैसे? 3x is an integer. सॉरी 1.5 हो गया तो और क्या हो सकता है वो 8.33 4/3 कर लो ठीक है इफ 3x इज एन इंटीजर ऊपर लिखूं क्या 3 into x सो x तो 4/3 भी हो सकता है विच इज 1.3 यस तो भी 3x इंटीजर है ना सो 3x इज एन इंटीजर जरूरी नहीं है हम बोल सकें और क्या x इंटीजर भी हो सकता है जब 3x इंटीजर है दैट कैन ऑलवेज हैपन यस तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो आउट है अब क्या दोनों स्टेटमेंट अगर मेरे पास है यूजिंग दैट कैन आई डेफिनेटली से x इंटीजर है नहीं है एक बोल रहा है कि भाई 3x तो डेफिनेटली इंटीजर है एंड x/3 इंटीजर नहीं है What can we figure out here? Somebody tell me. Let's see. कौन बता पा रहा है? x/3 is not an integer, and 3x is definitely integer. इससे क्या हम बता सकते हैं कि x integer है नहीं है? सोचिए. Anyone? Pratisha, come again. Your voice is not clear. Voice So नहीं से answer come. D. So answer D. We'll say 1 to 1 of the question. What are you saying? Answer D. Answer तो पता है हमें. But can we figure out using this? 3x is an integer and x/3 is not an integer. Sir, x is a fractional number. X can be any number, right? Again, same idea. X can be any number, right? When 4/3 is, this will be not an integer. And here it can be 12 also. ठीक है? And as we took, अगर हम x को 4/3 ही लेते हैं x को ही 1.33 then also x/3 is not an integer but 3x is an integer. Can we say anything here in this case? Same ही example लिया है हमने वापस. Again there are no formulas in such question to solve. You have to apply your logic and you have to apply multiple cases. तो दोनों ही केस में we can say कि बॉस कुछ नहीं कह सकते. It can be integer also. It can be a non-integer also. We can say that. Yes, that means you don't have an answer. So, both statement 1 and 2 are not sufficient to answer the question. But you have to learn to put some values and figure out an answer. कि भाई कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता है. So you have to be very open with playing around with words. 4 लिया तो 4/3 भी ले सकते हैं, 10/3 भी ले सकते हैं, 7/3 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 17 भी ले सकते हैं. ठीक है? Because it is asking if x is an integer or not. Getting the point? So ऐसे questions में कोई formula नहीं होता है. Just your understanding of integers, numbers. That is what is required here. Nothing else is required here. ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं. ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है. ये जो सारे यूपीएससी क्वेश्चन में लेके आया हूँ मोस्टली 20, 21, 22 के एंड देयर आर सम 23 के क्वेश्चंस आल्सो सो दैट वो अपना डर निकले लाइफ से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Let's see if you can solve this question. जहां भी डाउट है प्लीज स्टॉप मी. क्या है ये क्वेश्चन? लेट्स सी इफ यू कैन सॉल्व दिस. सोचिए सब अपना अपना सॉल्व करिए.
it says consider the following statement in respect of two natural numbers p and q such that p is a prime number and q is a composite number. What is the composite number? Anything which has more than two factors. So anything that is not a prime is a composite number. ठीक है, जीरो इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. और वैसे भी हम यहाँ कौन से नंबर्स की बात कर रहे हैं? नेचुरल नंबर्स की. तो उसमें जीरो आएगा क्या? नहीं. सो ऑल द नंबर्स दैट वी हैव टू कंसीडर स्टार्ट्स फ्रॉम वन ओनली, वन एंड अबव. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. कोई बोल रहा है ए, आई हैव एन आंसर ए, आई हैव एन आंसर डी. यही तो ठीक करना है कि सबका आंसर सेम आए. चेक करिए आराम से, जल्दीबाजी नहीं. हाँ, आराम से करिए, जल्दीबाजी नहीं. मैं नहीं बता रहा हूं. वन इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर. तो वन भी नहीं लेना है दोस्तों. ठीक है, वन भी नहीं लेना है. Answer D. Okay, we have the answer D there. We have A also. Try to solve. इसमें नंबर नहीं लेने हैं. क्या पूछ रहा है? प्राइम पूछ रहा है या ऑड इवन पूछ रहा है? नंबर से आ गया, चलिए. बट थोड़ा लॉजिक सोचिए. इट सेज P इज प्राइम. कितने लोगों का नहीं सॉल्व हुआ है अभी तक? हु इज फेसिंग ए प्रॉब्लम? ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो एक बार. आई गिव यू टाइम. हो गया सॉल्व? डॉक्टर साहिबा, वकील साहिबा, सबके प्रोफेशन से बुलाएंगे अब. कौन वेले लोग हैं यहाँ पे? हाँ हाँ जी, वेले भाई साहब. हो गया आपका? पीछे तीनों का हुआ? यस. शिल्पी, आंसर डी. एनीबडी हु हैज गॉटन ए बी सी में से या डी में से कोई आंसर डी के अलावा? ए. एनीवन एल्स? दोबारा कोशिश करी, अभी भी ए आ रहा है या एक ही बार करती हूँ मैं? एक चीज़ एक ही बार करती हूँ मैं, दोबारा नहीं करती. हैं? कोई सवाल मैंने मुड़ के नहीं देखा कभी दोबारा. ऐसा है क्या? हाँ जी, व्हाट इज आंसर? कैसे? श्योर? अपने आप किया? एक दूसरे का देख के नहीं करना है. एग्जाम में कोई साथ नहीं होगा. आ गया आपका? नहीं आया? कुछ तो ला. ए ला, बी ला, सी ला, डी ला. खाली क्यों बैठा है? सबका डी आ गया दोस्तों. करें? आपका सी आया, ए आया आपका. थर्ड में क्या है? ओके, चलिए लेट्स सी क्या हो रहा है. इट सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 to इंफिनिटी होंगे नेचुरल नंबर्स. तो फर्स्ट थॉट इज दिस वन दैट शुड कम टू माइंड. सुनिए दोस्तों, बातें नहीं करिए. यस, एंड इट सेज P इज प्राइम. P तो प्राइम है, ठीक है. एंड Q इज अ कंपोजिट नंबर. सो कैन Q बी इवन और ऑड और बोथ? Q कैन बी बोथ. इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल 4 इज अ इवन कंपोजिट नंबर, 9 is a odd composite number. Yes, जो प्राइम नहीं है. What about prime numbers? Except for 2, which is even, everything is odd. Yes? Are we sure? चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं. P into Q can be odd. Must be odd नहीं बोला है इसने, पहली बात तो. Can be odd. So P into Q, odd into odd is odd only, right? Odd into even is even. Even into even is even. So there is one possibility at least where odd into odd is there. So P into Q can be odd. Yes. नंबर लेके नहीं करना चाहते हैं, पहले ये करते हैं, नंबर लेके भी करेंगे. पहले ऑड इवन से समझिए, फिर नंबर लेके भी कर देंगे. क्या इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? तो फिर क्यों समस्या है? लो 9, तभी तो कंपोजिट है. तभी तो कंपोजिट है. 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है ना. मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए ना, तभी तो कंपोजिट है. 15, ये इसमें डाउट नहीं होगा. 5 या 15,
ठीक है, 5 भी हो गया, 15 भी हो गया, 1 भी हो गया, 3 भी हो गया। ठीक है, चलिए नंबर लेके कर लो मैडम। आप 2 इंटू 4 कर सकते हो, आप 3 इंटू 9 भी कर सकते हो, जो 27 आएगा, तो ऑड तो हो सकता है। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, Q by P कैन बी अ प्राइम नंबर। Q इज व्हाट, कंपोजिट। ठीक है, तो हम अगर इवन अपॉन ऑड की बात करें, डिवाइड कर रहे हैं अगर किसी चीज को 2 से, इवन अपॉन ऑड, तो क्या आएगा, प्राइम आएगा। कह सकते हैं क्या, कैसे कैसे 1 एंड 2 कैसे आया लोगों का आंसर बताइए। हाँ जी, सेकंड कैसे सही है? Six by three. Q by P can be a prime number. Q is what? 25. P is 5. कोई भी एक नंबर ले लो, 5 आ गया। Is 5 a prime number? हाँ, 10/2 भी ले लो, 6/2 भी ले लो। Yes? ठीक है, so can it be a prime number or not? It can be a prime number very easily. कैन पूछ रहा है, मस्ट बी अ प्राइम नंबर होता तो स्टेटमेंट वुड हैव बीन रॉन्ग। इफ फर्स्ट स्टेटमेंट वाज P and Q मस्ट बी एन ऑड नंबर, स्टेटमेंट वुड हैव बीन रॉन्ग बिकॉज देयर इज बोथ पॉसिबिलिटीज, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। P plus Q कैन बी अ प्राइम नंबर, कैन बी अ प्राइम नंबर अगेन, हो सकता है क्या, कैसे, गिव मी एन एग्जांपल। 2 plus 5, ये दोनों प्राइम है। 2 plus 9 11 हो गया। ठीक है, 5 plus 6 11 हो गया। सो एक भी केस में अगर हम बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर बन रहा है तो प्राइम बन जाएगा। ठीक है, थर्ड क्यों नहीं आया था सर, क्या किया, प्राइम नंबर 3 ले लिया था तुमने, तो ठीक है। सर अगर मस्ट भी दिया होता तो मस्ट भी दिया तो गलत हो जाता। सर सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ती है। यस सर, तभी तो कैन पूछा है। ओके सर। मस्ट में भी सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी है, कैन में भी सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी है। कैन में आसान ये होता है कि द फर्स्ट पॉसिबिलिटी दैट हिट्स यू कैन गेट एन आंसर, यू डोंट हैव टू वेट लॉन्गर। ठीक है, एंड इट इज मच इजियर टू गेट द फर्स्ट पॉसिबिलिटी एज समथिंग लाइक दैट। इज दिस क्लियर सुधा? सर कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। एनी केस दैट वर्क्स, यू डोंट हैव टू टेक द सेम वैल्यू टू प्रूव और डिसप्रूव अ स्टेटमेंट, यू कैन टेक एनी वैल्यू इन एनी केस। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। क्या लिया था तुमने ऐसा 3 लेके, क्या गड़बड़ हो गई थी, गलत मार्क कर दिया। दूसरा क्वेश्चन हो गया तुम दोनों का जो गलत मार्क कराए हो। 5 नंबर तो जो आ रहे थे वो गए और साथ में 5/3 और गए। ठीक है, सोचो, 7.5 नंबर उड़ा दिए तुमने, 7 नंबर। सर हाँ जी सर मैंने 8/2 लिया, वो 4 सेकंड वाले ऑप्शन के लिए। सेकंड वाले Q ऑप्शन के लिए upon आपने P, क्या लिया, 8/2, 8/2, वो 4 आ गया मेरा 4 आ गया composite। सर। फिर मैंने जल्दी में ही 18/3 लिया, 8 को 18 कर दिया और अपॉन 3 लिया, हाँ, वो 6 आ गया, 6 आ गया। वो फिर कॉम्पोजिट। तो जल्दी थोड़ी करनी है, सॉल्व करना है। सर मतलब एग्जाम में तो इतना ही टाइम रहेगा ना, नहीं, तो तो यू मतलब हैव टू थिंक ऑफ अदर ऑप्शंस आल्सो ना, कि कोई एक 40 पॉसिबिलिटी है क्या। इसके बाद 40/5 करा, 40/5 वो किया, 8 आ गया। नंबर भी तुम ऐसे सोच रहे हो तो इसको फिर कहते हैं मैंने छोड़ किस्मत। दिया, फिर मैं ठीक है, जब किस्मत में लिखा हो कि भांडा वो फूटने वाला है तो फिर मैं भी साथ चलूंगा तो बचा नहीं पाऊंगा। सर इससे अच्छा प्राइम नंबर एक लेके उसको डिफाइन करने की कोशिश कर ले। इससे अच्छा तो प्राइम three को नंबर ले- लेके, हाँ नीचे प्राइम नंबर ले लो, ऊपर डिफाइन कर लो, सही बात है। इंस्टेड ऑफ ठीक है ऊपर सर। 40 लेके नीचे 5 से डिवाइड कर दिया। ओके सर। ठीक है, ये Yes, प्रैक्टिस से ही आएगा दोस्तों। चलिए, सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन ही है, इफ यू गाइस रिमेंबर। ठीक है, ये देखते हैं करते हैं क्या। इफ PQRS आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स, if PQRS are distinct single digit positive numbers, then what is the greatest value? पहले समझना है दोस्तों, 1 second, don't rush into solving, understand कि starting point क्या होना चाहिए मेरा।
if PQRS are distinct single digit positive numbers, ठीक है, सिंगल डिजिट, तो क्या हो सकते हैं ये 1 to 9 हो सकते हैं, they can be 1 to 9 only. Then what is the greatest value of P plus Q into R plus S? What is the thought process that should come to mind? What is the value of PQRS that you should assume? 9876. Last 4. किसी को डाउट है कि आप 1 2 3 4 भी ले सकते हैं और 2 3 4 5 भी ले सकते हैं. For a greatest product, the number have to be the biggest, largest at least. Yes. So I know that the possibilities for me are 6 7 8 9. सिर्फ यही 4 possibilities दे सकता हूँ मैं. Again UPSC का question है. This is how they ask the question. Right? So there are only 4 possibilities that I will take so that I can get a greatest outcome. Anything else would lead to a smaller outcome. Yes? तो अब या तो 6 plus 7 into 8 plus 9 करूं, और या 6 plus 9 into 7 plus 8 करूं. There are other possibilities also, if you see. But what is this? 13. What is this? 17. What is this? 15 and 15 only. ठीक है, कैलकुलेट करके देखिए. इसका तो 225 है, इसका कितना है 221. सर इसमें एक और पॉसिबिलिटी भी तो बहुत सारी अभी आ रहे हैं मैडम. 2 ये हुई, एक और बन सकती है 6 plus 8 and 9 plus 7 224. और वैसे भी कुछ सॉल्व करना ही नहीं था. द मोमेंट यू 225 ऑप्शन से रखे हैं. अच्छा 230 के लिए चेक कर सकते थे आप. यस, तो 225 इज ऑप्शन. अगेन अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो देख के डर जाते हैं. इज इट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल? इट इज नॉट. एंड दिस इज अ यूपीएससी क्वेश्चन. चेक करिए 2022 का है, आई थिंक 23 का ही है ये. बताओ जो खतरनाक पेपर मान के बैठे हैं. सर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स मतलब कैसे? डिस्टिंक्ट मतलब अलग, पॉजिटिव मतलब जिसमें माइनस ना हो. सर वो तो सिंगल डिजिट मतलब सिंगल डिजिट. सर 6 7 8 9 क्यों लिया? क्योंकि लार्जेस्ट लेना है ना मुझे. 1 2 3 4 लूंगा तो सम कितने कैसे लार्ज, वो प्रोडक्ट कैसे लार्जेस्ट आएगा? ये तो बेसिक है ना यार. 1 2 इसको 1 और 2 लेगा तो 3 हो जाएगा, 3 और 4 लेगा तो 7 हो जाएगा. 7 से 21 होता है. यहाँ ऑलरेडी हम 200 की रेंज में बात कर रहे हैं. ओके सर. हाँ जी सर यहाँ पे सर पॉसिबिलिटीज तो काफी सारे हैं मतलब. और कौन सा है सर? क्योंकि 225 तो आ गया हमारा आंसर. लेकिन और कौन सी पॉसिबिलिटीज है बताओ इन 3 के अलावा? 6 plus 7 हो सकता है, 6 plus 8 हो सकता है, 6 plus 9 हो सकता है. जहाँ 6 plus है ना, इधर 7 plus 8 हो जाएगा तो उधर 6 plus 9 आ जाएगा. वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो रहे हैं. 3 ही तो पॉसिबिलिटी बनेगी. देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी. व्हाट यू विल डू इन मेकिंग अ पॉसिबिलिटी इज कि चलो उसका 7 लेते हैं तो 7 plus 6 कर देते हैं या 8 plus 9 कर देंगे. क्या ये और ये सेम नहीं है? देन यू विल टेक अनदर पॉसिबिलिटी कि ठीक है इसको अब 7 plus 8 लेते हैं तो ये 6 plus 9 इधर बचेगा. क्या ये पॉसिबिलिटी ऑलरेडी कंसिडर नहीं कर ली हमने? So there are only 3 possibilities that will be there. There is no other possibility that will be there. Yes, उन्हें भी 2 hours में आपका पेपर सॉल्व करवाना है. They will not give you 100 possibilities. And if they are giving you 100 possibilities, then they are giving this question to skip. छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को. That's the point. Okay, be very clear about this. वो वहाँ गेम खेलने के लिए नहीं आए हैं आपके साथ कि बच्चों के मजे लेते हैं. They will still design a paper that you will be able to solve in 2 hours and clear easily. ठीक है, कोई खुंदक में थोड़ी बैठे हैं. अब आओ सालो मैं देखता हूँ कैसे करोगे. ऐसे थोड़ी कर रहा है यूपीएससी. They are not doing that, right? So that is the point. You have to understand. So ऐसा नहीं होगा कि there will be n number of possibilities. अगर n number of possibilities बन रही है, then there is a different method that has to be applied. Simple as that. ऐसी चीजों में कोई फॉर्मूला नहीं है. You have to understand. It is only the understanding, basic understanding that is required to be clear. Is this clear? Why did you take 6, 7, 8, 9? Everyone. Yes, sir. And not any other thing. सर मुझे सिर्फ उतना कंफ्यूजन हुआ कि लाइक 4 नंबर है तो कई सारे पॉसिबिलिटीज रह सकते थे. हाँ, तो वो एक बार लिस्ट डाउन करोगे तो समझ में आ जाएगा. ओके सर. है ना? आप कॉम्बिनेशंस देख रहे हो, परम्यूटेशन देखने हैं, बट वो उसमें हम जा नहीं रहे हैं अभी. नॉर्मल सामने लिखोगे अपने आप पता चल जाएगा कि पॉसिबिलिटी नहीं है.
चलिए खत्म होगी स्मार्ट वर्क लैब्स। अब आगे बढ़ते हैं, न्यू टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। सर वो वाला फॉर्मूला वाला बताए थे, दिखाएंगे कौन सा सर? सर पिछले क्वेश्चन। फॉर्मूला वाला कल बताएंगे सर। ओके सर। यस हाँ, वो अभी इसके बाद बताता हूँ, बताएंगे आज ही बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। Okay, now we are talking about properties of number, people. Do we know one thing, that if there is a 2-digit number xy, this is called a tens digit, this is called a unit digit, और अगर कोई z भी है तो this will be called a 100 digit. So I can represent this number as 100z plus 10x plus y. क्या ये सबको आता है करना? Are we clear on this part? Yes, UPSC tend to ask the question on this also, this concept as well. ठीक है? So if it is only xy, then we can represent it as 10x plus y. Are we clear on this? हाँ, ये याद रखना है. So एक property है that difference between a two-digit number xy and its reverse, which is yx, is always a multiple of 9. 9 into something होगा ये. This is a property. ये लिख लीजिए. इस पे क्वेश्चन बनते हैं. ये अनफॉर्चुनेटली याद करना है, याद करने की जरूरत भी नहीं है, एक बार सॉल्व करोगे समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है ये. Yes, it says difference between a two-digit number xy and its reverse yx is always a multiple of 9 and is equal to 9 into mod of x minus y. This is called a mod. Are we aware of this, people? ये दो डंडे होते हैं, इसको mod बोलते हैं. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू ओनली. दैट मीन्स अगर 5 है, mod 5, तो दिस इज इक्वल टू 5. अगर mod -5 है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 5. ठीक है? दिस इज द पॉइंट. सो वी आर सेइंग 9 इंटू mod of x minus y. So the question, it says difference between a two-digit number xy and its reverse yx is always a multiple of 9 and is equal to 9 into mod of x minus y. मतलब ये जो दो डिजिट हैं इस नंबर की, उसके डिफरेंस के बराबर इंटू 9 होगा. ठीक है? ये आया कैसे? फॉर एग्जाम्पल देख लो, 54 and 45. This is what is saying. This is equivalent to 9. That is, or we can say 9 into 5 minus 4, which is 9 into 1. Yes, 5 और 4 का डिफरेंस 1 है. mod x minus y किया ना हमने. Another example ले लेते हैं. Let's take one more example. 36, 63. ठीक है? ये कितना हुआ? 27 minus 27, whatever. This is equal to 27 is equal to 9 into minus 3 कर लो. ठीक है? हालांकि हम mod की बात कर रहे हैं क्योंकि डिफरेंस की बात कर रहे हैं. और -3 क्या है? 3 minus 6. 9 into 3 minus 6. क्लीन उस पर करते हैं. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. हाउ अबाउट 99? 99 minus 99 0 है, तो 9 into 0 है. 9 into 9 minus 9. What is the problem? X minus y only, no? So 9 into 0, which is 0 again. It will work. Two-digit number, any combination that you put. Let's say 18 and 81. कितना बैठ रहा है ये? 63. ठीक है? 63 is what? 9 into 7 or 9 into 8 minus 1 या 1 minus 8, whatever you want to call it. क्या बैठ रहा है? Is it working out? Yes. Now how did we arrive at this conclusion? हमने बोला xy minus yx. Can I write xy as 10x plus y?
minus yx as 10y plus x, 10x plus y ब्रैकेट खोल देते हैं, minus 10y minus x, 9x minus 9y, 9 कॉमन ले लें, x minus y. Yes? So this is how we arrive at this कि xy minus yx will always be, या हम इसको mod की वैल्यू ले लें क्योंकि डिफरेंस को हम पॉजिटिव टर्म में देखते हैं. हम ये नहीं बोलते डिफरेंस -63 है, वी वांट टू से डिफरेंस इज 63 बिटवीन द टू नंबर्स. सो दिस इज हाउ वी अराइव एट दिस. अब क्योंकि आपको ये पता है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है एज सच, बट इफ यू रिमेंबर यू ट्राई, यू गेट टू सॉल्व द प्रॉब्लम फास्टर. क्या ये समझ में आया? यस? नहीं आया? आ गया? एनी डाउट इन दिस? पॉजिटिव आउटकम, mod means that. Is this clear people? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, this is how you solve it. Let's see if we can do this question. If we add 54 to a 2-digit number, solve नहीं करना है, बिना solve करे, बिना पेन उठाए क्या कुछ बता सकते हैं? पहले बेसिक वो देखेंगे. If we add 54 to a 2-digit number, the number is reversed. Yes? How many such 2-digit number are possible? So पहली बात तो can I say 54 को देख के कि x minus y की वैल्यू क्या होगी? What will be the value of x minus y? रशिका, x minus y की वैल्यू 1 क्यों होगी? हमने क्या बोला था? xy minus yx, यही बोल रहा है ना ये? If we add 54 to a digit, the digits are reversed. यही बोल रहा है? So that means दोनों का डिफरेंस 54 है, बोल सकते हैं? ठीक है, अब मुझे नहीं पता कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, तो मैं ये कर देता हूं. दिस इज व्हाट? 9 into 6 और नॉट? यस? और क्या हमने अभी नहीं देखा कि 9 into mod x minus y, तो क्या x minus y 6 नहीं हो जाएगा सीधा सीधा? So we know x minus y is 6. This is a faster way of doing it. Just by looking at the number, you have to see what multiple of 9 it is. यही तो बनाया ना हमने. And that multiple of 9 is going to be a difference of the 2 digits. That makes the number. क्योंकि हमने यही फॉर्मूला बनाया है, xy minus yx is equal to 9 into mod of x minus y. So जहां भी 9 into 6 आ गया तो ये 6 है, 9 into 7 है तो ये 7 है, 9 into 2 है तो ये gap 2 है. That is all we have to understand. Who did not understand this? Sir, again. Sir, please repeat it. I'll repeat. हाँ. Sir didn't understand. Yes, तो ऐड हो रहा है तो मतलब दोनों का डिफरेंस 54 है ना. ये बोल रहा है कि भाई एक्स वाई में मैंने 54 ऐड किया तो वाई एक्स हो गया. यही तो बोल रहा है ये. इंजीनियर है ना तू? तो ये क्या हुआ? एक्स वाई माइनस वाई एक्स 54 हो गया ना. और हमने बोला ये शुरू से ही कि मॉड लेते हैं अपन. तुम इसको वाई एक्स माइनस एक्स वाई कर दो, फर्क नहीं पड़ता उस बात से. वी वॉन्ट टू गेट द पेयर्स. आर यू गेटिंग दिस? ऑनलाइन समझ नहीं आया दोस्तों? क्या समझ नहीं आया? वी से और वी सॉ दैट एक्स वाई माइनस वाई एक्स इज 9 इंटू एक्स माइनस वाई. यस ऑनलाइन गाइस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सो इफ वी से दैट इन दोनों का डिफरेंस कुछ 54 है, तो इन दिस केस कैन आई राइट 9 इंटू 6. सो कंपेयरिंग इट विद दिस फॉर्मूला, कैन आई नॉट से दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 6? ऑनलाइन गाइस? If this number Yes, is sir. 45, which is 9 into 5, again comparing it with this formula, can I not say x minus y mod is equal to 5? Can I say that? I'm just trying to explain it to you. नहीं समझ में आ रहा है तो we always have the long method. 10x 10y is equal to 54. 9 into x minus y is equal to 54. x minus y is equal to 6. सर दो क्वेश्चन नहीं बनेगा. क्वेश्चन वही बनेगा जो सॉल्व हो सकता है.
ठीक है, यस सर पूछा नहीं गया, डिलीट पूछी गई है ना, तो मुझे एक डिफरेंस तो पहले पता तो चले, कुछ तो मैं कहीं तो आऊं, अभी आएगा ना सेंस। अभी फर्स्ट पार्ट पे ही अपन, अभी फर्स्ट पार्ट पे ही अपन, तो पहले तो ये पार्ट समझना है दैट हाउ कैन वी क्विकली फाइंड आउट x माइनस वाई क्या है। फर्स्ट थिंग इज दैट, यस, विदाउट हैविंग टू पिक अप द पेन वी कैन क्विकली फाइंड आउट x माइनस वाई क्या है। अदरवाइज पेन से तो आराम से कर ही सकते हैं कि मुझे बोला गया है कि भाई एक्स वाई में इफ आई ऐड, दिस इज अ लॉन्ग मेथड, if I add 54 it becomes yx, तो let me say yx minus xy, ये मैं उधर ले गया हूँ, is equal to 54, then I can say 10y plus x minus 10x minus y is equal to 54, I can say 9y minus 9x is equal to 54, और y minus x is equal to 54 upon 9 which is 6। यही तो आए हम घूम फिर के, बट सिंस वी नो द प्रॉपर्टी वी डोंट हैव टू सॉल्व दिस, सो दैट इज द फर्स्ट क्लैरिटी दैट वी नीड टू नो, बिकॉज ये यूपीएससी पूछता है क्वेश्चन ऐसा, एंड इफ वी कैन क्विकली डू इट we'll save time for other questions or reading comprehensions or stuff like that. We don't have to do this 6 steps that we did. Yes, so first thing तो हमें पता चल गई कि 54 वाला एग्जाम्पल लिया है हमने, that x minus y is 6। ठीक है, x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 to 9 हो सकती है, सिंगल डिजिट है ना, यस 1 to 9 हो सकती है, x कैन ऑल्सो बी 1 to 9, y कैन ऑल्सो बी 1 to 9, एंड वी नो x माइनस वाई 6। अब लेट्स सॉल्व इट कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी 7, यस, x की वैल्यू 2 है, y इज 8, x की वैल्यू 3 है, y इज 9, कुछ और भी हो सकता है, x की वैल्यू अगर 4 है तो y बिकम 6, बन तो सकता है, बट ये 17 बना, ये 28 बना, ये 39 बना, ये 46 बना। ठीक है, आगे भी हो सकता है, अभी रुक जाते हैं, बट हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें बोला है इफ वी ऐड 54 टू अ टू डिजिट नंबर द नंबर इज रिवर्स्ड। इसमें अगर मैं 54 ऐड कर देता हूं ये क्या हो जाएगा 100, इज इट रिवर्स्ड, माइनस में नहीं यार, सम ऐड किया है ना मैंने, माइनस भी कर लो, रिवर्स हो रहा है क्या, कौन सा माइनस में आएगा दोस्तों, ये सिर्फ अलग अलग नंबर लिखे हैं मैंने, x माइनस वाई 6 है, माय गॉड, x माइनस वाई मैंने 6 लिखा था, अब लेट्स से x कॉमा y की क्या क्या वैल्यू बन सकती है, कैसे हो रहा है ये 1 से स्टार्ट करते हैं, x की वैल्यू 1 हो सकती है, तो y की वैल्यू क्या होगी इसके हिसाब से 7, ये मॉड है, इसमें मत कंफ्यूज हो जाना, ये मॉड है, 2 हो सकती है तो y की वैल्यू हो जाएगी 8, 3 होगी y की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है, एक 4 होके 5 भी ले लेते, सॉरी 4 और 6 ले लेते हैं, उल्टा कर रहा हूं मैं, कोई बता नहीं रहा है मुझे सर 4 और 6 कैसे आएगा, 1 और 9 होगा सर, 2 और 8 होगा, 3 और 7 होगा, उल्टा लिख रहा हूं मैं, कोई बता रोक भी नहीं रहा है मुझे, क्या लिख रहा हूं मैं, सब लोगों ने कंफ्यूज कर दिया, पहले सब सही चल रहा था, हाँ x कॉमा y 1 and 7, सॉरी 2 and 8, 3 and 9, यही तो आएगा, 4 and 6 नहीं आएगा, इट्स फाइन। ठीक है, कमाल कर रहे हो यार, ठीक है 6 और 0, चलो 6 और 0 भी आ जाएगा भाई, बट क्या 6 और 0 आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता 6 और 0, 0 6 हो सकता था क्या, 0 6 हो सकता क्या, तब तो सिंगल डिजिट नंबर है क्या ना, तो 6 और 0 हो सकता है, एक पॉइंट पॉसिबिलिटी, बट द मोमेंट आई ऐड 54 इन दिस, व्हाट डज दिस बिकम, नीचे चेक कर रहा है वो, तो वहां क्यों देख रहा है, अच्छा तुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, टेक आदमी है यार तू। हाँ 114 हो गया, क्या ये रिवर्स हो रही है डिजिट्स, पहली बात तो 3 डिजिट ही बन जा रहा है, राइट, बट तो ये तो नहीं हो सकता, सो व्हाट ऑप्शन डू वी हैव, 17, 28 एंड 39,
यस, सो 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ नंबर दैट आर देयर. क्या कोई और भी ले सकते थे? क्या 71 भी ले सकते थे? क्यों नहीं लिया 71? क्योंकि प्लस 54 करेंगे तो रिवर्स नहीं होगा, इट विल गो टू द नेक्स्ट 3 डिजिट नंबर ऑल्सो. ऐसे ही 82 भी ले सकते थे, बट अगेन 54 ऐड करेंगे तो रिवर्स नहीं होगा. सो देयर आर ओनली 3 नंबर्स दैट बिकम्स अ पॉसिबिलिटी. इज दिस क्लियर? यस, लेट्स सी इफ दिस क्लियर. 54 चेंज कर देते हैं, 36. बताइए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? सेम क्वेश्चन, डू इट प्लीज. व्हाट इज x minus y in this case? 4. Let's solve. Give me an answer. Let's see. Karo. Do it. Please don't sit idle. Everyone please solve it. If we add 36 to a 2-digit number, digits are reversed. Tell me what is the answer. How many? I got an answer as 5. Anybody else? Online guys. ADI, आपका नाम क्या है? आदित्य. ओके, तो आदित्य 2 पॉसिबिलिटीज ही बन रही है आपकी. Five. Anybody? Any other answer? Anjali? 5. 5. 4. Somebody said 4 also. ओमकार. पीछे सर आपका ब्राउन जैकेट. हाँ, आप नहीं आया. उनका जो आपके आगे बैठे हैं. आपका सर आया नहीं. ट्राई करिए. 5 आ गया. यू आर नॉट गेटिंग. ट्राई करिए, कोशिश करिए, देखते हैं क्या अभी करेंगे सॉल्व. क्यों नहीं आएगा? मैडम आपका आ गया. यू बड़ी मिशु. हाँ भाई. अरशद अभी भी नहीं आया. क्या समझ में नहीं? पहले वाला समझ नहीं आया था तो रोक के पूछा क्यों नहीं? क्या नहीं समझ में आया बताओ. Let's see what is happening. 36 is what? 9 into 4. People look here now. आपको भी नहीं आया? कितना? 5. 36 is 9 into 4. ध्यान से समझो अर्शद. Yes? तो कहना है सिंपली से कि यार x minus y जो डिफरेंस है वो 4 तो होगा. Yes? तो अब निकाल लेते हैं x y की पॉसिबिलिटीज. ठीक है? कैलाश ऑन द बोर्ड नाउ. x 0 हो सकता है क्या? x 0 होगा तो x y जो बनेगा वो सिंगल डिजिट नहीं हो जाएगा. x के नॉट बी 0 फर्स्ट ऑफ ऑल. बी वेरी क्लियर. सो 1 हो सकता है, डिफरेंस 4 है, y विल बी 5. 2 हो सकता है, y विल बी 6. 3 4 हो सकता है तो ये 8 होगा, और ये 5 हो सकता है तो ये 9 होगा. यस, that means 15, 26, 37, 48 and 59. अगर डाउट भी है तो ऐड करके देख लो. 36 plus 59 is what? 95. 15 कैसे आया? 1 से लिया हमने x की वैल्यू. x माइनस वाई मुझे पता है दोनों का डिफरेंस 4 है तो y का 5 बनेगा नेचुरली. 5 minus 1 4. नहीं, अभी भी नहीं आया. बताओ क्या डाउट है? अरे 1 5 x की x y यार. 1 और 5 15 डिजिट्स है ना ये. x y एक नंबर था तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, y की वैल्यू क्या हो सकती है, दोनों का इकट्ठा लिख देंगे. 1 और 5 15, 2 और 6 26. KABI यार कबीर वो किया है और कुछ नहीं किया. ठीक है? 6 हो सकती है वैल्यूज. 6 हो सकती है. एक और बताइए. 6 अगर ले 4 और 0. 4 और 6 0 और कैसे हो जाएगा? तुम 40 कर दोगे, पहली बात तो 36 ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 76. रिवर्स कैसे हुआ? और 4 0 रिवर्स होके क्या बनेगा? 0 4. तो 2 डिजिट नंबर कैसे रह गया? 0 तो हो ही नहीं सकती ना वैल्यू, ना x की ना y की. x and y cannot be 0 because the reverse of it will be a single digit number, not a double digit number.
तो 40 तो कभी नहीं हो सकती। हाँ जी मैडम, छठा नंबर क्या है? If x is equal to 6, If then x y is is equal to equal to 6, 10. y 10 कैसे हो सकता है 2 डिजिट नंबर में? Oh. हाँ जी, y Yes, 10 sir. कैसे हो सकता है? Okay, got it. गॉट इट। 1 to 9 ही तो हो सकता है ना। Yes. 2 डिजिट कैसे हो सकता है? एक डिजिट, ठीक है। डिजिट मतलब 1 to 9 सिंगल डिजिट, 10 इज अ नंबर नॉट अ डिजिट। डिफरेंस समझिए। आर वी क्लियर? कौन कौन सी वैल्यू बनी? 15, 26, 15 प्लस 36 कितना हुआ? 51, 26 प्लस 36 कितना हुआ? 62, 37 प्लस 36 कितना हुआ? 73, 48 प्लस 36 कितना हुआ? 84, 59 प्लस 36 कितना हुआ? 95। वेरीफाई भी हो गया। दैट द डिजिट आर रिवर्सिंग। अगेन विल आई टेक 51 ऑल्सो? 51 51 आएगा क्या? रिवर्स नहीं है, क्यों? 87 आ रहा है। सर है Sir, सर। we are adding number 87 to आ it. रहा है 57 क्यों नहीं आएगा? 51, सर, 87 आ रहा है, रिवर्स नहीं हो रहा। एक मिनट रुक जाओ। 51 कैसे नहीं आएगा? 51 का उल्टा कितना है? 51 प्लस 36 87। 87। क्या डाउट है? रिवर्स नहीं होगा ना 36 ऐड करके, इसलिए 51 नहीं है। यस, रिवर्स उससे कम हो ही नहीं सकता, रिवर्स उससे कम हो ही नहीं सकता नंबर से। रिवर्स रिवर्स उससे कम हो ही नहीं सकता क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं पहली बात तो अभी तो। बट 51 प्लस 36 इज व्हाट? 87। इट इज नॉट रिवर्सिंग। इवन इफ यू टेक दैट वन पॉसिबिलिटी विच इज लेफ्ट एज 51 कि 5 और 1 का गैप भी तो 4 ही है, व्हाई नॉट टेक दैट? बट इफ यू टेक दैट पॉसिबिलिटी द रिवर्स इज नॉट, the number is not reversed, right? So how many numbers are there? 5 numbers are there. Getting the point? Let's say नहीं रुकिए, 45 सॉल्व करिए एक बार। Let's see how many numbers. 45 सॉल्व करिए। I got an answer 4। चेक कर लीजिए आराम से एक बार। मैडम 4। हर्ष निकल रहा है अभी आपका? परेशान क्यों बेटा? पीछे निकला नहीं, निकल रहा है। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है? फोर एवरीवन क्लियर है? 4 देखें कैसे। अब x माइनस वाई कितना है? 5। तो एक्स वाई की क्या वैल्यू बन सकती है? 16, 27, 38, 4, 9 एंड 50। 0 कैन नेवर बी पॉसिबल, रिवर्स सिंगल डिजिट रह जाएगा। यस 61 हो सकता है क्या? 61 भी ऐड करोगे 45 तो कहाँ चला जाएगा? 3 डिजिट में चला जाएगा, 106 हो जाएगा। तो इट इज नॉट रिवर्सिंग एनीवे, ठीक है ना? दैट्स द पॉइंट। तो एक चेक ये भी हो सकता है कि भाई 45 माइनस 100 माइनस 45 कितना हुआ? 54। तो कोई भी नंबर जो आएगा 54 से कम ही होगा, बिकॉज द मोमेंट आई एड 45 वो 100 प्लस हो जाएगा। एनी नंबर हैज टू बी लेस देन 54 ओनली। देयर इज ऑल्सो अ वे टू चेक, क्योंकि द मोमेंट आई एड 45 इंटू एनीथिंग विच इज मोर देन 54 इट विल गेट कन्वर्टेड इंटू 100। सो ऑटोमेटिकली वो 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। जरूरत नहीं है, सिंपल यहीं तक रखेंगे तो भी आ जाएगा। 4 पॉसिबिलिटीज। यस क्लियर हुआ ये? एनी डाउट इन दिस? सो यू हैव टू रिमेंबर द प्रॉपर्टी xy माइनस yx इज 9 इंटू मॉड ऑफ x माइनस y। उससे आपके 5 स्टेप सॉल्व बच जाते हैं, क्योंकि आप सीधा पता है x माइनस वाई का डिफरेंस कितना आएगा। अदरवाइज यू हैव टू सॉल्व 5 स्टेप्स।
दैट विल टेक योर टाइम, और उसमें गलती भी करने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है. सो दैट इज द पॉइंट. चलिए लेट्स सी नेक्स्ट क्या है. चलिए ये बताइए, लेट्स सी इसमें क्या करेंगे. इफ वी ऐड 18 to a two-digit number, its digits are reversed. If the original number and the new number both are prime, how many such two-digit numbers are possible? Now we have added one more condition in this. So first thing that we know of is what? How much is x minus y? 2. 9 into 2. ठीक है, तो possibilities बनानी पड़ेंगी फिर से. What are we going to do? Tell me what is the answer, people. Let's see. 1. थोड़ा पेन चलाओ दोस्तों. I have an answer as 1. I have an answer as 2. कौन कौन से नंबर बन रहे तेरे? चेक करिए एक बार. Are you getting the question? So what is the one thing that changes here? What is the one thing that changes here? That both the numbers are prime this time. So prime होने का क्या मतलब है? This time I'll have to take what values of x? 1 to 9 में. Can I take 2 as x? Yes. नंबर रिवर्स हो जाएगा तो प्राइम रह जाएगा क्या? तो फिर कैसे ले लेंगे 2? If I take 2 as a value of x and let's say the number become 24 or number become 25, है तो 24 ही. Yes, the moment I reverse the number, will it not become 52? Does it remain prime? Even number है ये तो पहले तो वो आउट हो जाता है. So what do we get here? That what value of x and y can I take? Odd values only. The moment I take even value, the reverse of that number will become an even number. 41 will become 14. 14 is an even number. It cannot be a prime number. So x की वैल्यू या y की वैल्यू दोनों की वैल्यू इवन तो नहीं हो सकती. यस, ऑड नंबर तो प्राइम तो ऑड होते हैं ना, इवन नंबर प्राइम कहाँ होते हैं? सो आई कैन ओनली टेक 1 3 5 7 9. आर वी क्लियर ऑन दिस? दैट वाई आर वी नॉट टेकिंग 2 4 6 8? यस, क्योंकि एक्स वाई अगर 2 4 6 8 81 भी कर दिया तो 18 हो जाएगा. Getting the point? So we cannot take even values in this case because prime लिखा है. These are the things that you have to tweak in your approach. This is where UPSC will ask a question. थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी. वो सिंपल था, वो 2017 में आया था, ये बाद में आया है. थोड़ा सा कि चलो थोड़ा आप देखते हैं, थोड़ा स्किल सेट और इम्प्रूव हुआ है क्या लोगों का. दैट इज हाउ. एक और आया बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वो भी देखेंगे. ठीक है, होम शीट में दूंगा, वो सारे यहाँ कर रहे थे तो होम प्रैक्टिस शीट के लिए बचेगा नहीं कुछ. सो नाउ 9 कैन बी देयर एंड 7 हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता ना. 18 ऐड करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? आगे चला जाएगा. शुरू से करते हैं फिर से वही. 1 हो सकता है तो 3 हो सकता है, राइट? 3 हो सकता है तो ये 5 होगा. 2 डिफरेंस है ना. अगर ये 5 होगा तो ये 7 होगा, और अगर ये 7 होगा तो ये 9 होगा. ठीक है, दैट इज हाउ इट वर्क्स. यस, 35 अपने आप में प्राइम नहीं है. ठीक है, और कौन सा प्राइम नहीं है? 75 तो हटी गया. 75 प्राइम नहीं है, बनेगा पलट के. 57 का उल्टा 75 हो जाएगा, रिवर्स. ये 13 है, ये 35 था, ये 57 था, ये 79 था, ये एक्स वाई है ना. तो रिवर्स भी होना है. ये 31 बनेगा, ये 53 बनेगा, ये 75 बनेगा, ये 97 बनेगा, है ना. आ रहे हैं अभी, 1 मिनट रुको, पहले आ रहे हैं. सो पहली बात तो ये 35 ये कट जाता है हमारा, बिकॉज इट इज नॉट अ प्राइम नंबर टू बिगिन विद. 7 इंटू 5 35. ठीक है, 57 भी कट जाएगा क्योंकि उसका रिवर्स जो है 75 वो प्राइम नहीं है.
बोथ नंबर हैज टू बी प्राइम। क्या 13 और 31 दोनों प्राइम है? तो एक पेयर तो ये बनता है, ठीक है। और दूसरा, क्या 79 प्राइम है? बट क्या 97 प्राइम है? यस और नो? आर यू श्योर? Yes. गुड। कितने बने? 2 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, ओनली 2 नंबर्स आर पॉसिबल, ठीक है। इज दिस क्लियर? सो व्हाट डिड वी चेंज हियर? बिकॉज इट वाज अ प्राइम नंबर, द बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट प्राइम नंबर कैन नॉट बी एन इवन नंबर, वी हैड टू रिमूव द इवन पॉसिबिलिटीज। और इसमें भी छांटना है कि 35 अपने आप में प्राइम नहीं है, 57 का ऑपोजिट अपने आप में प्राइम नहीं है। आपने 57 ले रखा है। Getting it? Just presence of mind is required. There is no formula that can solve these questions. Just the presence of mind that is required over here. Application component है ये. You have to apply. चलिए ये क्वेश्चन एक बार पढ़िए करने से पहले। अभी हमने पहले भी क्वेश्चन किया। Is this the same question or a different question? We did this question पीछे. If it is the same question, we skip it. If it is a different question, tell me why it is different. Is it a same question or a different question? कितने लोगों को लग रहा है सेम है, कितने लोगों को लग रहा है डिफरेंट है? एक ही बात है, बढ़ जाए आगे। सर सेम है। सेम है, सेम है। ये डिफरेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्यों डिफरेंट है? रिवर्स दे इसमें क्योंकि ऐड करने के लिए नहीं बोल रहा है, इसमें डिफरेंस बोल रहा है। तो वी हैव टू टेक ऑल द पॉसिबिलिटीज। हाउ? क्या डिफरेंस है यही समझना है। दिस इज वेयर क्वेश्चंस आर प्लेड विद। हमने देखा मॉड एक्स वाई 45 है, तो एक्स वाई सॉरी 5 है ना, 9 5 45। तो एक्स वाई की पॉसिबिलिटीज क्या बनाते हैं हम? 1 6 यस, 2 7 3 8 4 9, ठीक है। तो ये नंबर बने थे। तो नहीं होगी ना इसमें 4 9 क्यों नहीं होगी इसमें? सर, क्योंकि 9 4 9 का रिवर्स अगर इसमें 45 ऐड करेंगे। हाँ, तो 94 हो जाएगा। है? हाँ ना बेटा 4 9 में 45 ऐड करेगी तो 94 ही तो होगा। ठीक है ठीक है कैसे? है ठीक है, ठीक है चलिए। ठीक है। तो नंबर बन गए 16 27 38 49। The previous question said if we added 45 the number would reverse. Yes? Now it is saying the difference between the two digits or two numbers, the difference between a number and its reverse is 45. तो difference 16 और 61 का भी, but difference 61 और 16 का भी। तो एक नंबर 16 हो सकता है, दूसरा 61। तो उधर क्योंकि आप डिफरेंस पूछ रहे हैं, एडिशन नहीं पूछ रहे हैं, so you have to take both possibilities. You have to take both possibilities. Getting the point? Yes or no? So it will not be 4 only. जैसे 16 और 61 का गैप है 45, 61 और 16 का भी तो गैप है 45, सॉरी, ठीक है। They are two different numbers. A is 16, B is 61. But A can be 61 also, B can be 16 also. क्योंकि यहाँ पे ऐड करने को नहीं बोला है, डिफरेंस पूछा है। So you'll have to take all iterations. The difference between a two-digit number and its reverse is 45. तो अगर हम इंडिविजुअली देखते हैं तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। कोई बोले भाई 16 और 61, दूसरा बोले नहीं नहीं 16 और 61 नहीं, 16 और 61 और 16। पहले वाले में क्यों ऐड नहीं किया था हमने? पहले वाले में क्यों सेकंड आइटरेशन नहीं लिया हमने? बिकॉज 61 में 45 ऐड करते ही हम 3 डिजिट पे पहुंच जा रहे थे। इस केस में आंसर 4 नहीं होगा, डबल है, ध्यान देना है। दैट इज व्हाई दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, बिकॉज वी आर नॉट आस्किंग यू टू ऐड एंड देन इट इज रिवर्सिंग, वी आर ओनली सेइंग डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज दिस नंबर एंड इट्स रिवर्स। सो 61 का रिवर्स 16 होता है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल? तो नंबर्स तो ये सारे ही पॉसिबल है ना।
क्या क्या लिखे थे हमने? 16, 27, 38, 49, 61, 72, 83 एंड 94 इंडिविजुअल नंबर्स पूछे हैं। तो 16 एक नंबर है, 61 एक दूसरा नंबर है। इसका रिवर्स कर दोगे तो भी एक पेयर बन जाएगा, इसका रिवर्स कर दोगे तो भी एक पेयर बन जाएगा। सो अंडरस्टैंड, यू हैव टू लर्न टू रीड द क्वेश्चन राइट एंड पिक अप एन आंसर, बिकॉज एक ऑप्शन में 4 भी होगा ऑप्शन, 8 भी होगा ऑप्शन। गेटिंग द पॉइंट? किसको डाउट है इसमें? क्या समझ नहीं आया? एनीवन? क्लियर हुआ? सो द की पॉइंट इज बिफोर सॉल्विंग लर्न टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन करेक्टली। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और मुझे क्या आंसर करना है। दिस इज द आर्ट दैट यू हैव टू लर्न। इट इज एन एप्टीट्यूड पेपर, मैथ्स नहीं, वो एप्टीट्यूड ऐसे ही चेक कर रहे हैं कि क्या आप समझ पा रहे हैं। अंजलि क्लियर है? एनी डाउट ऑनलाइन गाइस? सर लास्ट वाला समझ में नहीं आया, मतलब कैन यू एक्सप्लेन वंस अगेन हाउ इज इट डिफरेंट अ लिटिल बिट? It is different because if we said that if 45 is added to a number, the digits are reversed. Yes? Yes sir. Yes. So in that case, only these numbers are possible. How many such two-digit numbers are possible? Because if I add 45 here, what do I get? 106. So it is not reversing. Yes. Yes. But here in this question it says xy minus yx is 45. The difference between the two, the number and its reverse is 45. So अगर मैं नंबर 16 लेता हूं तो 16 minus 65 is 45, 61 is 45. अगर मैं नंबर 27 लेता हूं तो ये है, बट आई कैन ऑल्सो से ना क्या 72 भी तो नंबर है, इसका रिवर्स 27 है, सब्ट्रैक्ट करो 45 आ रहा है। Yes sir. Yes. That is how. Yes sir. Getting the point? Understand the minor differences in the question that are asked and how the answer will change. यहीं गड़बड़ हो जाएगी, यहीं मार्क्स कट जाएंगे। जहां प्लस 2.5 होगा वहां माइनस 3.3 करा के आ जाएंगे। सर यस सर। तो इधर -45 प्लस और -45 कहाँ लिखा है? सर डिफरेंस पूछा है ना बस, डिफरेंस ही तो बोला है। पॉजिटिव 45 लिखा है ना? हाँ तो डिफरेंस बोला है बस, दोनों का डिफरेंस 45 बोला है। ये नहीं बोला है कि पहले इसको सब्ट्रैक्ट करो बाद में उसको सब्ट्रैक्ट करो। डिफरेंस तो आप ऐसे ही बोलते हो ना, कोई पूछे यार 100 और 90 का डिफरेंस बता, -10 थोड़ी बोलते हो आप बोलते हो 10 है। ओके सर। ठीक है? सो दैट इज द पॉइंट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सर ऐसे नहीं पूछते, वो इतना गेम नहीं खेलेंगे। नॉर्मल डिफरेंस बोला है 45 है, सो 16 और 61 का भी डिफरेंस 45 है। गैप देखते हैं हमेशा। देखो यार नंबर सिस्टम चल रहा है ना, सारा गेम नंबर लाइन पे होता है। ठीक है? 16 का ऑपोजिट 61 है, नंबर लाइन के बीच का डिफरेंस है 45। ठीक है? बट इफ यू टेक इट अगेन लाइक दिस कि नंबर लाइन में 61 भी तो एक नंबर है, इसको ऑपोजिट 16 है, व्हाट इज द डिफरेंस? 45। दैट इज हाउ यू सी इट। ओके, सो द डिफरेंस ऑफ द नंबर एंड इट्स रिवर्स इज 45। दैट इज हाउ यू सी इट, इट इज 45 ओनली। ठीक है? अंडरस्टैंड? चलिए सर जो 72 भी आ सकता था ना, 72 भी आ सकता था ना, तो 72 नहीं ले सकते हम? 72 - 27 कहाँ लिया ना, क्यों नहीं लिया 40? हमने? लिया ना भाई, लिया तो है। इनफैक्ट इसमें 50 भी आएगा आई थिंक। टू डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स। नहीं, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर पॉसिबल? नहीं, ठीक, हाँ तो 50 भी आएगा एक नंबर। 15 05 नहीं आएगा ना। हमने लिया कितना? 16 61, हमने लिया 27 72, हमने लिया 38 83, हमने लिया 49 94 और एक 50 भी है, क्योंकि 50 का रिवर्स ऑपोजिट क्या है? 5, और दोनों का डिफरेंस कितना है? 45। बट हम 05 नहीं लेंगे बिकॉज देन इट इज नॉट अ टू डिजिट नंबर। सो 8 नहीं 9 ऑप्शंस हैं इसमें। Yes, 50 is also an option here. Getting the point? कि 50 minus 05 is how much? 45. A two-digit number and its reverse. The difference between a two-digit number and its reverse is 45. But हम यहाँ पे 10th number नहीं ले रहे हैं because it is not a two-digit number. How many such two-digit numbers are possible?
सो दिस एंड 50. ठीक है, चलिए वही तो बताया. 05 इज नॉट टू डिजिट नंबर बट 50 इज. 50 और उसका रिवर्स 5, दोनों का गैप 45 है. बट उल्टा पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि 5 तो टू डिजिट नंबर है ही नहीं. ठीक है, चलिए. There are certain two-digit number. Difference between the number and one obtained on reversing is always 27. How many such maximum two-digit numbers are there? Simple question again, same question, right? UPSC ने पूछा था ये. ठीक है, कितना है आंसर? करिए सॉल्व. What is the answer? आराम से सॉल्व करिए. रिपीटेटिव प्रैक्टिस करेंगे तभी क्लैरिटी बढ़ेगी. आंसर कर. कितना, क्या आंसर है ABCD में से? D आ रहा है, 5 आ रहा है आपका, C भी आ रहा है. somebody saying C, somebody saying D. How many of you are getting C? Online guys, is everyone getting D? Why are you getting D? How many numbers are you getting? 12, 13. कितने नंबर आ रहे हैं? 12 या 13? 13 आने चाहिए मेरे हिसाब से. चेक करिए. There should be 13 such numbers. Are you getting 13 numbers? Yes, all of you. You are not getting 13 numbers. क्या नाम है इसका, भूल गया मैं. No. How many are you getting? Yes, Harsh. हर्ष क्या कह रहे हो? हाँ, what will not come as an answer? X minus y कितना है? 3. तो एक्स वाई देख लेते हैं. हाँ, 1 4. क्यों 41 माइनस 14 27 नहीं होता है? 14 माइनस 41 इज नॉट 27. क्वेश्चन में कैसे? ये प्रॉब्लम. होता है भाई. अरे अभी ऊपर समझाया था, नंबर लाइन पे है. The difference, when we talk about difference, we never say difference is minus 27. Okay, it is always the gap. Difference is the gap. What is the gap between the two? The gap is only 27. वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, we don't care. It is a gap that we talk about. Don't go into minus and plus here. हाँ जी, तो 14 हुआ, 25 हुआ, 36 हुआ, 47 हुआ, 58 हुआ, 69 भी हुआ, 30 भी होगा. There are certain two-digit number, difference between number obtained on reversing. Reversing पूछा है, दोनों two-digit नहीं बोले हैं. उसमें बोला था if we add 54 in xy it becomes yx. That means दोनों ही outcome भी two-digit था उस केस में. इसमें हम सिर्फ डिफरेंस की बात कर रहे हैं. अभी पीछे 50 लिया था तो ऐसे यहाँ 30 भी ले लेंगे. 30 का उल्टा 3, दोनों का डिफरेंस 27. हैं जी प्रतिशा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. अब तो आवाज आएगी. आएगा ना, ठीक है. और क्या 41 भी आ जाएगा? आ जाएगा ना.
41, 52, 63, हाँ 74, 85, 96, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 और 1 13. देयर शुड बी 13 नंबर्स. हाँ जी आए. क्यों 30 भी आया ना, 30 नहीं लिया पीछे 50 सर, इसलिए रोक के 30 बताया कैसे? था क्योंकि 30 30 के कैसे? उल्टा 3 है और दोनों का डिफरेंस 27 है. अर्लियर two क्वेश्चन digit में number आप बोला नहीं उसने. समझ रहे हो. अर्लियर क्वेश्चन में इट सेड व्हेन एक्स वाई राइट in a two digit number when 54 is added it reverses, it becomes this. तो y x के फॉर्म में दिया है उसने, तो that means it is expecting a two digit number only as an outcome. When y is 0 it becomes a single digit number. It should have said कि भाई x बन जाएगा, y नहीं बनेगा. That is why they have given it like that, right? When 54 is added to xy it becomes yx. ठीक है, दैट इज द पॉइंट. अभी हम बोल रहे हैं कि एक नंबर और उसका जो रिवर्स है उसका डिफरेंस 27 है, तो 30 का रिवर्स 3 है, डिफरेंस तो इसका भी 27 ही है ना. ठीक है, उसमें क्यों नहीं लिया, एक्स वाई में 54 ऐड करना था पहली बात तो. ठीक है, तो एक्स वाई सिंगल डिजिट नहीं हो सकता था अपने आप में ही, एंड वो वाई एक्स बन रहा है तो वो भी सिंगल डिजिट नहीं है. दैट इज वाई, दैट इज द डिफरेंस. सो नन ऑफ द अबव इज द आंसर बिकॉज वी आर गेटिंग 13. चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. ये 30 के लिए अपन है ना 10x प्लस y करके कर सकते हैं. बिल्कुल कर पाएंगे सर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाँ जी. सर इसमें हाँ, तो 30 is a two-digit number. The difference between the number and the one obtained on reversing. Certain two-digit number मतलब 14, 25, they are certain two-digit numbers. It's a pair. क्या 0, 3 ये पेयर नहीं बोल रहा है, ये नंबर और उसके रिवर्स का गैप बोल रहा है. तो रिवर्स तो 3 है ना, नंबर और उसके रिवर्स का गैप बोल रहा है. There are certain two-digit numbers. कौन से हैं वो certain two-digit numbers? ऐसे. Got it? Not a pair. Okay? इससे पहले इंग्लिश की क्लास लेनी चाहिए शायद, उसके बाद मैथ्स पढ़ें. चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी. अभी हमने देखा था टू डिजिट नंबर में द नंबर एंड इट्स रिवर्स गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 9. यस, नाउ इट्स अ थ्री डिजिट नंबर. इट सेज द डिफरेंस बिटवीन अ थ्री डिजिट नंबर एक्स वाई जेड and zyx. ध्यान दीजिएगा, difference between a three digit number xyz and its reverse zyx is always a multiple of 99. xyz minus zyx is always a multiple of 99 and is equal to 99 into x minus, ये x minus z होना चाहिए दोस्तों, x minus y नहीं, is equal to 99 into x minus z. अभी सॉल्व करेंगे. ठीक है, लेट्स सॉल्व इट द वे वी डिड. एक्स वाई जेड इज व्हाट, एक्स वाई जेड माइनस जेड वाई एक्स कर लेते हैं. तो 100x प्लस 10y प्लस z माइनस 100z प्लस 10y प्लस x. यस, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों तरफ 10y है. सो इट बिकम्स 99x माइनस 99z. 10y कैंसिल आउट हो गए ना, सब्ट्रैक्ट हो गए. ठीक है, 99x माइनस z, दैट इज वाई x माइनस z मैडम. तो बीच के डिजिट का कोई मतलब नहीं है इसमें, ध्यान रखिएगा. x माइनस वाई नहीं, x माइनस जेड है ये. राइट डाउन, गलत टाइप हो गया वहां पे. क्लियर? सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्री डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 99
एन इज इक्वल टू 99 इंटू एक्स माइनस जेड, द 100 डिजिट एंड द यूनिट डिजिट का गैप जो रिवर्स हो रहे हैं. y तो वहीं का वहीं है, इग्नोर y. ठीक है, y यहाँ भी मिडिल में है, y यहाँ भी मिडिल में है, उसको इग्नोर करिए. जो स्विच हो रहे हैं सिर्फ उसका गेम है. क्लियर? यस. चलिए लेट्स सॉल्व दिस. अब तो आ जाएगा क्विकली. अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 digit number of which the middle number is 0. मतलब ही नहीं हमें उसका वैसे भी. We don't care about the middle number. And their sum is 4. Yes? If the number is formed by interchanging the first and last digit, it's greater than the number itself by 198. The difference between the first and last digit is what? Question समझ में आ रहा है? इसने बोला है कि XYZ फॉर्म का एक नंबर है जिसका मिडिल नंबर तो 0 है. और क्या बोला है? x प्लस z का सम 4 है. ठीक है, ये बोला है. एंड इट सेज अगर नंबर को हम रिवर्स कर देते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को रिवर्स करके, तो वो उस आउटकम जो है, जो ये ZYX है, ये आउटकम कितना है? 198. यस. हाउ मेनी द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, मतलब x और z का डिफरेंस फाइनल पूछ रहा है वो. तो इसमें क्या बाकी सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत है हमें सिंपली क्या बताना है? इससे क्या निकल सकता है? इज इक्वल टू 99 इंटू आपका 2. तो x माइनस जेड इज 2. बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, कोई कहने वाली बात ही नहीं है. बट क्यों ही करना है हमें? ओके, वी डोंट केयर अबाउट एनी अदर इंफॉर्मेशन as long as they have given us the information that this सर is a possibility. लास्ट स्टेप रिपीट करोगे? So last step तो फॉर्मूला लगाया ना जो पिछला सीखा, प्रॉपर्टी सीखी है जो हमने. हाँ सर, हाँ. ये होता है ZYX minus XYZ is 99 into mod x minus z. तो 99 into mod Yes, x sir. minus z मतलब x minus z 2 है. और उसने वही पूछा है आपका द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट वुड बी व्हाट. इसी को x और z की वैल्यू से भी करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अब हमें पता है x प्लस z 4 है. यस. तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है? 1 3 2 2 3 1. यही 3 वाली है. 0 आ सकता है क्या? रिवर्स होगा तो 3 डिजिट नहीं रह जाएगा. ठीक है, तो आप इससे सॉल्व करके देख लो. एक बनेगा 103, इसमें 198 ऐड करके देखो. ठीक है, कितना हुआ ये? 301. तो ये बन गया. सिंपल तरीके से, जैसा अगर वैसे करना है, सिंपल सॉल्यूशन. दूसरा है 22. ठीक है, 202. इसमें 198 ऐड करोगे तो ऑब्वियसली नहीं बनेगा, क्योंकि 202 में तो कुछ भी ऐड नहीं करोगे तो ही आके रिवर्स होगा वो. तो ये पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती है. एंड 301 और 103 का डिफरेंस आपका 198 है. ठीक है. इफ द नंबर इज फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ. नहीं, अगेन इफ द नंबर इज फॉर्म्ड, तो इसमें एक ही ऑप्शन आया. क्वेश्चन सेज इफ द नंबर इज फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट. तो मैंने 103 लिया था, इसको इंटरचेंज किया 301 में, तो ये बोल रहा है दिस नंबर इज ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ. तो ये हैज टू बी ग्रेटर देन दिस. इफ आई टेक 301 एंड इफ आई ऐड 198, तो क्या बन रहा है? तो ये तो आपका हो रहा है 499. पहली बात तो रिवर्स नहीं हो रहा है, बिकॉज द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन 198. तो रिवर्स वाला नहीं लेके चल सकते हैं इस केस में. आर यू गेटिंग द पॉइंट? इट सेज if the number formed by interchanging the first and last digit
right, is greater than the number itself by 198. तो starting point 103 हो सकता है. Number formed by interchanging the first and last digit will become 301. So this is itself greater than the number itself. If the starting point is 301, the reverse number is 103. This is smaller, not greater. यहाँ अगर difference लिखा होता तो I would have taken both. But it is written that this number is greater than the original number itself. So इसका reverse तो greater नहीं है. Yes? So if यहाँ पे क्या change होता? Difference. ठीक है, तब मैं दोनों पॉसिबिलिटी लेता. अब क्योंकि ग्रेटर लिखा है तो आंसर विल बी वन ऑप्शन ओनली, बिकॉज 202 इज द रिमेनिंग ऑप्शन. इसमें तो 198 का कोई है ही नहीं, रिवर्स भी 202 ही है. यस, but the is asking difference between first and last digit. यस, तो वो तो हमें Sir, पहले ही पता first है इन and last जनरल. digit of the number. Yes sir. फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का, अच्छा फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का डिफरेंस 2 है तो आंसर 2 है. सॉरी, नंबर कितने टाइप्स हैं, कितने पेयर्स हैं, उसने पूछा डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट. सॉरी, सो द डिफरेंस इज 2. और कितने ऐसे सच नंबर हो सकते हैं जो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो एक ही नंबर हो सकता है. यस, ठीक है. इट हैज आस्क्ड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट. सो वन डिजिट इज 3 एंड वन डिजिट इज 1. सो डिफरेंस इज 2 ओनली. क्लियर? ठीक है. और हिम्मत है, थक गए? अभी खड़ा होके मैं पढ़ा रहा हूँ. चलो बस एक ही और बता दो, सिंपल. लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. वैसे 25 क्वेश्चन थे, 21 पे पहुंचे हम. एक ही और कर लो बस. Aditya, you understand why 301 is not a number now? The difference between a 3-digit number and its reverse is always a multiple of what? D. No, 9. Simple है? Yes? We know ना, xyz minus yzx is equal to 99 into x minus z. So multiple 9 का भी है, क्योंकि ये कुछ भी हो, ये 99 है, which is 9 into 11. So 9 का भी मल्टीपल है, 11 का भी मल्टीपल है. So answer is both A and B. ठीक है, सिंपल. अब इतना ही सिंपल था तो एक और देख लेंगे. अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी है, चलो कल करेंगे, बिकॉज इज अ न्यू प्रॉपर्टी. सो विल डू इट टुमारो. यस, सेम 11:30 विल बी द क्लास. अगर वो क्लास वर्कआउट नहीं हुई तो यहीं पे क्लास होगी, बट विल ट्राई कि वो वर्कआउट हो जाए. वो दैट इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर अस, मुझे ऐसा लग रहा है, जितनी भी कोशिश कर लें हम. बट टुमारो 11:30 दिल बी क्लास. डे आफ्टर क्लास कैंसिल नहीं होगी. अब उसकी वजह से तो नहीं होगी, अब हमें पता चल गया हम भाग के आ सकते हैं इधर. सो वी आर नॉट गोइंग टू कैंसिल द क्लास एनीमोर. ठीक है, तो सेटअप की वजह से कोई क्लास कैंसिल नहीं होगी. हाँ जी, क्या पिछले वाला क्वेश्चन अभी आते हैं सृजन. यार वो रूट मेथड रह गया प्राइम नंबर वाला, कल सबसे पहले याद दिलाइए.